ठीक है guys, can you tell me that question you are telling me कि वो दिया था आपने और करवाया नहीं है? Can you tell me that question? What was that question? Sir, x into sine of cos square x into cos X of sine into square. sine of cos square x plus की into cos of sin square x. Sine लिमिट क्या थी guys? 0 to 0 to पाई. बराबर. किधर भी बोर्ड का कुछ इश्यू आएगा तो मेरे को प्लीज रिमाइंडर देना. गाइस एक बार बताओ, इस क्वेश्चन में अगर मैं यहाँ पाई माइनस एक्स लिखूं तो स्क्वायर होने की वजह से कुछ गड़बड़ नहीं होगा ना? Yes सेम रह sir. जाएगा ना? यहाँ पे साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स, मतलब अगर मैं इस पार्ट को ध्यान से देखूं और इसको एफ एक्स लूं तो एफ ऑफ पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स आ रहा है ना? बोलो गाइस. Yes sir. yes sir. तो मैं पहले किंग लगाता हूँ. यहाँ पे किंग लगाया तो आई मेरे पास क्या आ गया? दिस कम्स आउट टू बी 0 टू पाई माइनस एक्स एंड दिस इज सेम. चेंज नहीं हुआ. Now guys, if I multiplied pi with this is something new. But if I multiplied x with this, then this is opposite side. And if I add it, what do I get? 2i is equal to pi times 0 to pi. And what do we get? Sine of cos square x into cos of sine square x. Am I right? Dx. Okay. Now guys tell me, f of pi minus x again what? fx no? प्रॉपर्टी 6 लगा सकते हैं अभी. Property 6. 0 to pi by 2. तो ये क्या हो जाएगा? 0 to pi by 2. It would be 2i is equal to 2 times 2 times pi 0 to pi by 2 sine of cos square x into cos of sine square x. Am I right? Dx. Macho, what do you say? yes sir. Right? Now tell me something. Macho, if I use king, what happens here? There'll be a big change. What change do you expect? I will use king. What do you get? I is equal to pi times सर cos square sin square बन जाएगा and sin square cos square बन जाएगा. हाँ, So, like, साइन ऑफ cos square x sin square x बन जाएगा. sin square x बन जाएगा, मतलब pi by 2 minus x लिखोगे ना, तो cos square pi by 2 minus x will be sin square pi by 2 minus x. Sorry, sin square x. And ये बन जाएगा cos of pi by 2 minus x. That is cos square x. cos of cos square x. ऐड करने पे sin of a plus b. हाँ. Now if I add these two, this is number 1 and this is number 2. If I add these two, guys, what do I get? 2i is equal to what do I get? pi times. बच्चों ऐड करो ना, डायरेक्ट बोलो ना एक स्टेप. sin one. of 1 इसको ए लेते हैं और इसको b. तो sin a cos b प्लस cos a, देखो a sin b. बच्चों sin a cos b plus cos a sin b. What do you get? Sin a plus Sin b. one Sin a a plus b. Sin a plus b means a is cos square x plus sin square x dx. What do you get? Sin 1. Sin 1 is constant ना guys? यस इंटीग्रल के बाहर तो बाहर आ जाएगा. तो 2i is, ये 2i नहीं आना चाहिए. 2 तो कैंसिल हो चुका ना यहाँ पे. नहीं सर, दूसरी बार लेकिन apply add किया करना है. add किया ना आएगा. I'm sorry. 2i is equal to कितना आ गया guys? ये आएगा बाहर पाई sin 1 and 0 to pi by 2 1 आएगा ना. तो बच्चों इसका आंसर तो कितना आ जाएगा? पाई sin 1 तो ये और pi by 2 ये, तो पाई स्क्वायर बाई 2 हो गया ना. दिस इंप्लाइज i is equal to कितना? पाई स्क्वायर बाई pi 4 square by 2 sin 1. पाई स्क्वायर बाई 4 sin 1. बच्चों इज इट क्लियर? Yes. Don't you think this is an easy question?
I mean, this seems difficult. There's no doubt about it. But this is not difficult question. This is an easy question. Have you all understood, guys? किसी को जिसको डाउट था उसको कोई प्रॉब्लम बचा है अभी? राइट. सो पिक्चर कौन ले रहा है? और सर एक और चलो, सम ठीक था है। होमवर्क में। अभी उसको ले लेते हैं. इसका स्क्रीनशॉट किसी ने लिया है क्या? Yes, sir. All right. Please post it on the group. अच्छा, एक और सम था. जय, can you tell me what is that? सर लाइक वो सम तो सॉल्व हो गया, बस उसमें एक डाउट था लाइक ठीक छोटा है. सा। I'll explain. No issues. ओके सर। इंटीग्रल sin inverse x by x dx is 0 to 1. Integral sin inverse x by x 0 to 1 dx. X is equal to sin theta. हाँ सर। Dx is equal to cos theta d theta. Okay. Finally, what do you get? 0 to 1. सर बाय पार्ट्स लगा के डायरेक्ट बोल दूं फाइनल आंसर। नहीं, मैं लिखता हूँ ना 0 to pi by 2. X आ जाएगा सर sin थीटा theta कॉट थीटा हो जाएगा। theta cot theta d theta. अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. इसको इंटीग्रेट करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे. तो व्हाट डू यू गेट? cot theta as it is. No. Sorry. थीटा Theta as it is. And differentiation of theta is, integration of cot theta is ln sin theta. 0 to pi by 2. Sorry, minus integral differentiation of theta. So what is left? Ln sin theta d theta. Now what do you get when you put pi by 2? Just look at this. What is sin pi by 2, guys? Sin pi by 2 is 1 and ln 1 is 0, isn't it? What do you say? Yes, sir. बराबर ना? Now tell me, when I put 0, so guys, this becomes, I have told many times, this is 0 plus and this is pi by 2 minus. बराबर ना? So guys, can you tell me one thing? When it is 0 plus, I write here. So this is 0 plus. Sin 0 plus is what? Zero. Zero. Ln 0 0 plus. plus 0 into infinity form, no? Yes. ना? Yes, sir. This is indeterminate. So what to do? Pi by 2 minus डाला तो 0 आ गया. Minus limit extending to 0 plus ln sin theta by 1 by theta. बोलो बच्चों, यही प्रॉब्लम है ना? अच्छा, हाँ इसका सर ये डाउट था सर वो। सुनो ना, आप देखो 0 to pi by 2 में इसकी वैल्यू पता है कि नहीं है? मैंने करवाया था तुम लोग को ये. 0, sir. हाँ सर माइनस पाई बाय टू minus pi by 2 ln 2. Minus pi by Yes, 2. ये कितना हो जाएगा? प्लस pi by 2 ln 2. बराबर है ना? अरे वो माइनस तो इसका आएगा, माइनस के साथ बैलेंस हो जाएगा ना बच्चों. This becomes this one. Now tell me one thing. ln sin theta upon 1 by theta, ये कौन सी फॉर्म है? बताओ, ये कौन सी फॉर्म है? Infinity by infinity. Infinity by infinity. इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म को डिफरेंशिएट कर सकते हैं ना गाइस? Yes, sir. Yes, sir. बराबर ना? इसको डिफरेंशिएट किया कितना आ गया? cot थीटा. इसको डिफरेंशिएट किया कितना आ गया बच्चों? minus 1 by theta square. minus 1 by theta square. minus 1 by theta square. बच्चों, कैन आई राइट दिस? ये तो हो गया, ये तो इधर राइट साइड में हो जाएगा. कैन आई राइट दिस एज थीटा अपॉन tan थीटा into theta with negative sign, and the limit is theta tends to 0 plus. Achha, can I write it like this? Yes, sir. Yes, sir. What is it? Zero. What is it actually? 0. 1, but this is 0. Hence this is 0. So this would be 0. So the final answer is pi by 2 ln 2. Jay, have you understood this? हाँ सर लाइक वो मैंने लिमिट भी लिया था बट लाइक कंफर्म करना था लाइक वही करना था। हाँ, लिमिट लेना ही है, लिमिट लेना ही. गाइस एक बात समझो, तुम लोग जेई के प्रिपरेशन में मतलब तुम्हारा जो डिफरेंस ऑफ रिजल्ट होता है ना, like you guys are preparing hard, you guys are very disciplined in working, and you guys really deserve a good rank. See, it's something like you guys understand or don't understand, and then after you guys are
really serious in asking the problems or you are ignoring it. That all depends too much. I mean, we don't care of it actually, which is too much important. Like जय को कहीं प्रॉब्लम आ रहा है, इधर में प्रॉब्लम आ रहा है, ऐसे सीरियल डाउट्स तो नहीं पूछने चाहिए. मतलब आई डोंट से दिस इज अ वेरी गुड डाउट, बट उसको प्रॉब्लम तो आ रहा है ना इसमें कि यार ये लिमिट पूरी इसी तरह से सॉल्व करनी पड़ेगी क्या. गाइस ये एक क्वेश्चन हो गया, उसके बाद डाउट उसका नहीं रहेगा ना, किसी बच्चे का नहीं रहेगा ना. अब उसको पता है कि यार ऐसी लिमिट्स आती हैं, घटिया से लिमिट भी आ सकती है. बच्चों एक बात समझ लो, घटिया से लिमिट भी आ सकती है. जब अपन लोग अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं ना बच्चों, तो घटिया से लिमिट भी आ जाती है. ये दिमाग में रखना. आर यू क्लियर विद दिस? किसी बच्चों को डाउट है इसमें? एक डाउट है सर, यहाँ पे हमने इंटीग्रल को बेसिकली लिमिट में ट्रांसफॉर्म कैसे कर दिया? इंटीग्रल को लिमिट में ट्रांसफर कैसे हाँ करें? सर, मतलब उसका रीजन क्या है जो हम वैसे लिख रहे हैं? नहीं एक बात बताओ, ये फॉर्मूला हम लोगों ने किया ऐसे, यस और नो? यस सर. अब मैंने π/2 लिमिट डाला इसमें, यस सर. तो 0 आ गया. यस सर. अब मैं 0+ लिमिट डाल रहा हूँ, 0+, लेकिन 0+ लिमिट से इसका कोई आंसर नहीं आ रहा, इंडिटरमिनेट फॉर्म आ रहा है. और इंडिटरमिनेट फॉर्म का आंसर क्या होता है ये तो निकालना पड़ेगा ना मेरे को. यस सर, लिमिट ही लेना पड़ेगा. डू यू अंडरस्टैंड दिस बच्चों? यस. अब देखो ऐसे क्वेश्चंस में, मतलब forget about this question, there are many questions which you are going to face in future, like you know this is something like you know we are completing the syllabus, but whatever syllabus we are finishing, every time I'm constantly telling you that whatever theory I speak on board, right, and if you want to write it looking at the recording or whatever, right, you should write in each and everything what you feel I must write it. हर बच्चे के नोट्स अलग अलग होते हैं, बट आई स्ट्रांगली बिलीव द वन हु हैज गॉट वेरी गुड कहते ना कैच ऑन द थियरी, ही इज वेरी नियर टू द जेई एडवांस गुड रैंक. ही इज वेरी नियर टू द जेई एडवांस गुड रैंक. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मैथमेटिक्स व्हाट आई एम टीचिंग, आई एम टॉकिंग अबाउट एंटायर मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री. Theory part is the key part of JEE Advanced actually. Instead of like you know solving 100 problems or 1000 problems, I believe in. So मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों को, जिधर भी थियरी अभी तक करवाया गया ना, इफ इट्स अ बैकलॉग ऑफ योर्स, तो उसको जल्दी से जल्दी पूरा करने का कोशिश करो. मेक अ टारगेट एंड फिनिश इट अप, राइट. अच्छा इसमें मेरे को एक चीज बताओ, 7th प्रॉपर्टी में कोई क्वेश्चन किया था क्या हम लोगों ने? नो सर. No, sir. No, sir, सिर्फ प्रॉपर्टी. अच्छा सिर्फ प्रॉपर्टी लिखा था. ओके सो गाइस वो प्रॉपर्टीज में एक बार जस्ट 1 ही मिनट लगेगा, तुम्हें रिमाइंडर दे देता हूँ. Then I'll take a question. We'll take 2 or 3 questions on this, right? And then I'll send you the screenshot of property number 6 का screenshot नहीं मिला है ना तुम लोग को? Say yes or no? नो सर. अच्छा थोड़ा सा सीरियस रहो प्लीज. जो भी पूछा जाए उस पर अलर्ट रहो, पकड़ रखो सब्जेक्ट पे. क्या सर पूछ रहे हैं, हम लोगों ने क्या किया है पहले, लाइक दैट. अब समझो, ध्यान दो. प्रॉपर्टी था if f of x plus t is equal to fx. What is it implying? Function is periodic, no? Periodic with period t. And this is what I made the graph. And we had 2 properties here. 0t, 2t, 3t minus t. जो किधर भी विजिबिलिटी इशू होएगा तो मेरे को प्लीज रिमाइंडर जरूर दो. आई वांट टू करेक्ट इट, क्योंकि ये परमानेंट हो जाएगा फिर, मतलब जितने दिन लेक्चर ऐसे होना है उस पे, राइट. f of x plus t is equal to fx. अब बच्चों एक चीज ध्यान दो, इसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी मैंने लिखी थी 0 to nt f of x dx is equal to n times 0 to t fx dx. Did I explain this property, बच्चों? Yes. Yes, sir, आपने किया. Have you all understood this? Is there anyone Yes. having doubt? And बच्चों, what was the condition on n? What was that? N belongs to natural number. No. Sorry, integer. Yeah, Sorry, yeah, integer. mistake is a mistake. That is a blunder. मतलब तुम्हें किधर ले जाएगा कुछ पता नहीं. Be careful in speaking. n belonging to the set of integer. अरे बाबा इधर भी आएगा तो चलेगा ना. अरे -t से 2t इंटीग्रेट करो बच्चों, बताओ आंसर क्या आएगा, कितनी बार होएगा?
3 टाइम्स हो जाएगा ना ये, बताओ 3 टाइम्स होएगा कि नहीं होएगा? Yes, Yes, sir. sir. हाँ, अभी इसके नाम पे बहुत सारी चीजें लिख सकते हैं, बट एक बात है, और बच्चों ये भी मैंने लिखाया था कल, याद करो। a टू a प्लस एन टी क्या था? एफ एक्स डी एक्स, a टू a प्लस एन टी, ये लो a। अच्छा ये डिस्टेंस a है और ये डिस्टेंस a है, दिस डिस्टेंस इज a। ओके, अच्छा एक बात बताओ, a टू a प्लस 2t अगर इंटीग्रेट करूं तो ये एरिया जहां मेरा मार्कर अभी है और ये वाला एरिया जहां मेरा मार्कर अभी आया है, दोनों सेम है ना? Yes, sir. तो बताओ मैं 0 टू 2t इंटीग्रेट कर दूं तो सेम आंसर आ जाएगा ना बच्चों? Yes. Yes. तो इसका रिजल्ट मुझे क्या लिख देना चाहिए? 2 टाइम्स 0 टू t एफ एक्स डी एक्स। Sir, लेकिन यहाँ 2 नहीं है, यहाँ n है, तो बच्चों ये कितना आ जाएगा? n आ जाएगा ना? यस सर। और बच्चों यहाँ भी n पे कंडीशन क्या है? बिलोंगिंग टू द सेट ऑफ Integer. इंटीजर्स। ये सेकंड प्रॉपर्टी समझ में आया क्या आप लोगों को? यस। बच्चों these are very easy properties, two easy properties we have discussed. Now tell me one thing, this is example 1 on this, सेकंड भी मैं कराऊंगा और थर्ड में फिर आप लोगों को करवाऊंगा, राइट? अच्छा फर्स्ट एग्जांपल ध्यान दो सब लोग, 0 टू 10 e raised to power box x dx। अच्छा ये फंक्शन, आई एम सॉरी, e raised to power fractional part of x minus box x। अच्छा ये फंक्शन पीरियोडिक है कि नहीं है बताओ? अच्छा जो लोग मोबाइल पे लेक्चर अटेंड करते हैं उन लोग को ये क्लैरिटी है क्या इधर? सर होती तो है। हाँ सर होती है। ब्लर हो जा रहा है सर, वो अलग बात है। नॉट ऑन मोबाइल, में लैपटॉप पे बता रहा हूँ सर, हल्के से बीच बीच में ब्लर हो रहा है सर। ऑन अ डिफरेंट नोट सर, आपकी लाइटिंग बहुत अनकंफर्टेबल सी है, बहुत कम लाइटिंग है सर, मतलब वो मुझे अंदर से बहुत अनकंफर्टेबल फीलिंग आ रही है देख के। आप कुछ लाइटिंग इंक्रीज कर सकते हो क्या? Sir, it's perfectly fine. सर इट्स परफेक्टली फाइन। इट्स परफेक्टली, मैं हल्का सा अनकंफर्टेबल, आई एम जस्ट सेइंग इट्स स्लाइटली अनकंफर्टेबल। अगर नहीं चेंज हो सकता है इट्स फाइन, बट चिन्मय सुनो, मुझे सिर्फ इतना बताओ, तुम पिछले लेक्चर्स भी अटेंड कर रहे हो, ठीक है? उसके कंपैरिजन में कुछ क्लैरिटी का प्रॉब्लम है क्या? क्योंकि मुझे इधर टेक्स्ट आ रहा है एकदम क्लियर। तो ऐसा भी हो सकता है बेटा तेरा नेटवर्क इस टाइम में थोड़ा वीक हो, क्योंकि ये सारा गेम तो नेटवर्क और लाइटिंग का है मेरी साइड से, और मेरी साइड से मतलब मेरी कोशिश रहती है कि एक लेक्चर कैंसिल नहीं हो, मतलब बिकॉज ऑफ इंटरनेट एंड बिकॉज ऑफ लाइट एंड एक्सेट्रा। मुझे सर इट्स क्लियर, ज्यादातर मैसेज जिनमें वापस ज्वाइन कर ना, तू हो सकता है तेरा ही गड़बड़ हो, क्योंकि किसी और बच्चे का मेरे पास आ नहीं रहा है। कोई और बच्चा है तो बोलो ना प्लीज। क्लैरिटी की बात नहीं कर रहा हूँ सर, लाइटिंग सर वो डल है हल्का सा। नहीं सर बराबर है। लाइटिंग मुझे बढ़ाऊंगा ना तो ब्लर आ जाएगा फिर। ओके सर, वो मैं बस अपना पर्सनल बता रहा था कि पर्सनली मुझे डर लग रहा था, ऐसा कुछ जनरल में नहीं। तो एक बार उधर देख ले, नहीं इट्स परफेक्ट। मेरे पास ज्यादातर मैसेज, चिन्मय के अलावा किसी को डाउट हो तो बोलो ना प्लीज। नहीं बेटा तू एक बार चिन्मय बेटा एक काम कर, वापस ज्वाइन कर ले, ठीक है? रीज्वाइन कर, ये चांस है, मतलब इंटरनेट इशू आता है बच्चों को ना तो दिक्कत आती है। ओके बच्चों ध्यान दो, इसका पीरियड कितना है बताओ? वन है ना, 1 है ना इसका पीरियड। Yes, sir. तो 0 टू एन टी में बताओ क्या करूं? इसका पहला स्टेप क्या लिखूं? व्हाट शुड आई राइट? सर 10 into 10 integral times 0 0 to to 1 e raised to x minus box x। e raised raised to to power x factor minus box x। अच्छा 0 टू 1 में तुम्हें नहीं लगता कि ये जो सर्कल मैं कर रहा हूं ये बकवास है? यस सर, जीरो ही हो जाएगा। जीरो हो जाएगा वो। तो ये मैं ऐसा लिख दूं क्या इसको, 0 टू 1 e raised to power x dx? यस sir of 10 है ना? और 10 तो आएगा ही आएगा बाहर, सॉरी आई डिडंट राइट दैट। बच्चों हो गया क्या ये क्वेश्चन? 10 e minus 1
बराबर है? यस सर। अच्छा बच्चों, सेकंड प्रॉपर्टी जो है ना, वो ध्यान से देखो। सेकंड प्रॉपर्टी अगर तुम नोटिस करोगे ना, तो तुम्हें पता लगेगा a टू a प्लस एन टी, a टू a प्लस एन टी। एंड बच्चों एक चीज बताओ, राइट हैंड साइड में जो आंसर आ रहा है, ये वाला जो आंसर आ रहा है, हाँ मुझे बताओ बच्चों, इसमें इसमें कहीं a दिख रहा है क्या आंसर में? नो सर। पता है ये प्रॉपर्टी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ जेई एडवांस, कि आपको एक इंटीग्रल में इधर एक पैरामीटर दिख रहा है। ए कैन बी एनी वेरिएबल ना बच्चों, ए का वैल्यू को कुछ भी हो सकता है ना, कोई भी रियल नंबर हो सकता है ना। तुम जरा समझो कि ए का कोई भी वैल्यू हो इधर, लेकिन आंसर ए के टर्म्स में नहीं आ रहा, इंडिपेंडेंट ऑफ ए आ रहा है। ये अपने आप में एक ऐसा क्वेश्चन बन जाता है जिसमें कभी कभी आप फंसते हो ना, निकल ही नहीं पाते हो अगर ये प्रॉपर्टी याद नहीं है तो, राइट? मैं दो एग्जांपल इस पे लूंगा। एक तो जेई एडवांस सब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं तुम लोग को दूंगा, देखते हैं कितने बच्चों को होता है, ठीक है? और उसमें बच्चों तुम लोग को रॉन्ग आंसर्स भी आएंगे बहुत सारे, पर सारे बच्चेस में एक्सपेरिमेंट हो चुका है, तुम्हारा बैच बचा हुआ उस क्वेश्चन के लिए। ओके बच्चे इस क्वेश्चन पे ध्यान दो थोड़ा। a टू a प्लस एन टी, सबसे पहले यहां देखो कि ये फंक्शन पीरियोडिक है क्या और इसका पीरियड t है क्या। अगर इसका पीरियड t है तो बच्चों ये लिमिट तो लिखा हुआ मिलेगा, मानते हो कि नहीं मानते हो बच्चों? यस यस सर। सर। बराबर। अब a टू a प्लस एन टी में, a टू a प्लस एन टी में a जो आ रहा है, राइट, ये जो a आ रहा है, ये नीचे तो लिखा हुआ मिलेगा, ऊपर तुम लोग को सेम एडजस्ट करना है। एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं बच्चों इसको। एग्जांपल 2, सब बच्चे ध्यान दो। 1 टू माइनस 2, 1 बाई e लिख रहा हूं बच्चों इधर, e रेज टू पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3x प्लस 1। बच्चों ये e कैंसिल कर दूं क्या इससे? नो सर। देखो जय कितना अलर्ट बोल रहा है, नो सर। सर क्यों करेंगे? सर ऐसे ही हटा दो। हाँ सर, फ्रैक्शनल पार्ट में वो इंटीजर्स तो ऐसे ही हटा सकते हैं। वैसे हटा दो किसने बोला? मैंने, अच्छा मानवी ने बोला। मानवी बोल रही है क्या कर रहे हो ये, क्यों क्यों सर उल्लू क्यों बना रहे हो? ठीक है ना, हटा दो ना। आपने गलती से लिख दिया ऐसा नहीं है, आपने इंटेंशनली उल्लू बनाने के लिए लिखा है कि सब लोग ई कैंसिल कर देंगे। मतलब जो लोअर बैचेज होते हैं ना, उन लोअर बैचेज में वो लोग ई कैंसिल मार देते हैं कि सर ने ई जो है यहाँ भी लिखा और यहाँ भी लिखा, गलती लिख दिया, इसको कैंसिल मार दो, ठीक है? तो बच्चों तुम्हें पता है ना, फ्रैक्शनल पार्ट में इंटीजर का तो कोई मतलब ही नहीं होता है। So this is nothing but 1 by e 1 to minus 2 e raised to power fractional part of 3x. बच्चों can you tell me what is the period of a fractional part of 3x? 3, इसमें 3 हो जाएगा। इसमें 3 रहेगा ना? हाँ सर। 1/3 1 by 3 1/3 सर। हाँ गलत मत बोलो यार, 1 by 3 है सॉरी period। सर, सर 1 by mod 3 है सर 1 by 3 अरे गधेड़ा कुछ भी यार, 1 by mod 3 3 होता ना यार, यस सर माइनस 3 होता तब तो बोल सकता था। अभी बोलेगा mod 2 mod 3 थोड़ी बोलता है कोई, 2 ही बोलता है ना। ओके बट स्टिल इट इज फाइन, मैं पीरियड 1 by mod 3 होगा, ठीक है बच्चों? अब एक चीज बताओ, इसमें जब ये फंक्शन पीरियोडिक है, इसका मतलब ये है कि हमें इंटीमेट कर रहा है ये कि पीरियोडिसिटी की प्रॉपर्टीज यूटिलाइज करो। बच्चों समझते हो इस चीज को? अब बच्चों बताओ ए का वैल्यू कितना है? 1 है ना? यस सर। तो बताओ मैं इसको ऐसे लिखूं, a2 सॉरी 1 to 1 plus n, व्हाट इज n? n छोड़ो, ब्रैकेट लिख देते हैं यहाँ पे। t कितना है बच्चों? 1 by 3 है। बताओ कोई इंटीजर पॉसिबल है कि वो उसको -2 बना दे? ये -9। -9, वेरी गुड वेरी गुड, -9 a to a plus nt e raised to power फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3x को लिख रहा हूँ, e raised to power 3x minus box 3x। बोलो बच्चों क्लियर है क्या ये? यस सर। बच्चों इसका पीरियड हो गया कितना? 1 by 3 a to a plus nt। बताओ मुझे यहाँ क्या करना चाहिए बच्चों? नेक्स्ट वाली स्टेप तुम ही लोग बताओ मुझे क्या करना चाहिए? -9 -9 बाहर आ गया, यहाँ क्या करूं? 0 to 1 by 3 1 by 3
और बच्चों अंदर क्या करूं, e to the power 3x का लिख दूं। और बच्चों x का वैल्यू अगर 0 to 1/3 होगा तो 3x किधर से किधर होगा बताओ? 0. Zero. ये 0 हो जाएगा ना, बॉक्स 3x Yes, sir. 0 हो जाएगा ना। कैन आई राइट इट dx हियर? Yes. बच्चों डन लिख दूं क्या या करके दूं पूरा? Done. पर अब क्यों नहीं, इसको थोड़ी सॉल्व करूंगा मैं, बोर्ड पे नहीं सॉल्व, एग्जाम में तो तुम्हें करके आना पड़ेगा, यू कांट लीव इट एक्चुअली। सर 1 by लिखना पड़ेगा ना। अरे हाँ, दैट्स अ मिस्टेक। पता है एग्जाम में यही मिस्टेक होती है जो बच्चों को रैंक किल करती है एक्चुअली। अब बताओ, ये ई कैंसिल करना एक इलॉजिकल स्टेप था, लेकिन इसको 1/e भूल जाना लिखना, ये जो ना ये बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है बच्चों। देखो ना, तुम देख लो ना इधर कितने टाइम से क्या सारे बैचेस में, इस बार भी 4 बैचेस में, 5 बल्कि 5 बैचेस में सेम क्वेश्चन कराया। 5th बैच में क्वेश्चन करा रहा हूं मैं भी, राइट, और मैं ही 1/e लिखना भूल गया। तो यू कैन नॉट प्रेडिक्ट इट एक्चुअली। इस तरह की गलतियां करना बंद करना। लिखना है इस चीज को, मैं तो नहीं लिखूंगा, लेकिन तुम्हें 10-10 बार लिखना है। डोंट फॉरगेट टू राइट द प्रीवियस स्टेप इन द नेक्स्ट स्टेप, समथिंग लाइक दैट। फटाफट एक स्क्रीनशॉट लो बच्चों इसका। Yes sir, taken. टेकन? ओके बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 3 फॉर यू। आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें 2 इजी क्वेश्चन कराए और तुम लोग के लिए मैं बम्बार्डमेंट दे रहा हूं। आई कांट डू एनीथिंग, करना ही पड़ेगा। अब तुम बोलोगे बम्बार्डमेंट क्या है सर, इजी तो दिया आपने भी। 0 to n pi प्लस v, है ना, और बच्चों मॉड cos x दिया हुआ है ये dx। अच्छा, जो क्वेश्चन सब्जेक्टिव में पूछा गया था ना, वो क्वेश्चन एज इट इज लिख रहा हूं मैं तुम लोग के लिए यहाँ पे। मुझे देखना कितने स्टूडेंट्स को ये क्लिक करता है। देखो किसी को भी क्लिक नहीं करेगा ना तब भी चलेगा, क्योंकि हम लोग ने इसके ज्यादा एग्जांपल किए नहीं है। इफ यू सॉल्व द बुकलेट and then you solve it, you will be able to solve these question। बुकलेट करने के बाद क्या ही दम रह जाएगा, बराबर ना। तो बच्चों ये क्वेश्चन 0 to n pi plus v है ना, और आगे उसने पूछा है प्रूव दैट वाला क्वेश्चन था इसी एग्जाम में, 2n plus 2 minus sin v। Here v belongs to, sorry, pi by 2 comma pi। बच्चों ट्राई, 5 मिनट का टाइम है गाइस। देखो ऐसे क्वेश्चंस में चैलेंज लेके और कुछ ट्राई करना चाहिए। नहीं आएगा ना उसकी चांसेस तो ज्यादा है, मतलब मुझे लगता है 20 बच्चों को अगर आ गया ना तो यू आर सक्सेसफुल। नाउ फर्स्ट 20 कौन आता है वो देखना है, 5 मिनट। सर फाइनल आंसर तक बताना है, लाइक हाँ बेटा, सर। इसमें फाइनल आंसर तक जाना है। ओके सर। वही एक मतलब इसीलिए तो है ना, 5 मार्क्स का क्वेश्चन था ये एडवांस में, तो फाइनल आंसर तक पहुंचना चाहिए ना। यार चिन्मय को कोस्ट ने क्यों निकाला बच्चों? सार्थक, गार्गी, हाँ सर दिस वाज अ थर्ड और फोर्थ टाइम जो मुझे निकाला गया है टू रीजॉइन फ्रॉम अनदर डिवाइस। नहीं यार बच्चों ऐसा मत करो।
थोड़ा सा नोटी ये था, सुधर गया है अभी, इन दिनों में पढ़ता भी अच्छे से। आई अप्रिशिएट हिम, आई टेल यू ऑनेस्टली, उसके कुछ सॉल्यूशंस मैं ग्रुप पे देखता हूँ, इट इज रियली अप्रिशिएबल। सो आई लाइक दिस बॉय। मैंने खुद ने भी बाहर निकाला हुआ है इसको बिकॉज ऑफ हिज नॉटी नेचर, बट ही इज गुड इन स्टडीज, और ऐसे बच्चों को हमेशा चांस देना चाहिए इंप्रूवमेंट का। सो प्लीज मेक श्योर कि कभी कोई बच्चा इसको अपने से बाहर ना करे, प्लीज। सर मैंने सर कुछ किया भी नहीं था सर, मैं बस आके वापस ज्वाइन किया सर। अभी ठीक है, अभी तू ज्यादा बकवास मत करे, आ गया ना। और सर इतना भी नॉटी नहीं हूँ सर, ऐसा मत बोलो सर, बुरा लगता है। कुछ नहीं, तू बकवासबाजी बहुत करता है ग्रुप पे, मैंने देख लिया। मैंने तेरे बहुत सारे ग्रुप्स और चैट्स भी देखे हैं, मतलब और जो ग्रुप्स पे तू तेरी चैटिंग चलती है ना, वो रिकॉर्डिंग भी बच्चों ने मुझे भेजी है, तो टेंशन मत दे। एम सर वाला तू देख, उधर देख, ध्यान दे। ब्रायन का भी हो गया, आर्यन हो गया, कितने 6 लोग का हो गया, और तू बकवास कर रहा है। इसका मतलब टाइम पे पास करता है ना। ये देख, मानवी और कितना यार, ये ओएपी जैसे 201359। बच्चों नाम से ज्वाइन करो ना, मजा नहीं आता फिर बाद में। नेक्स्ट टाइम से नाम से ज्वाइन करो बच्चों। 14 बच्चे। तू देख, जेई एडवांस का आया हुआ क्वेश्चन चिन्मय, तू बेशर्मी से बात कर रहा है मुझसे, थोड़ा तो ध्यान दे बेटा। 16 बच्चे हो गए और तेरा नंबर नहीं है किधर। तेरी तारीफ कर रहा हूं, तू ही पीछे चल रहा है। एक्सेलेंट यार। अच्छा बच्चों, एक बात प्लीज ध्यान रखो, पता है अपने टीचर को हमेशा, अपने टीचर और अपने पेरेंट्स, दो चीजें ध्यान रखो, है ना। अपने टीचर और अपने पेरेंट्स को कभी भी रॉन्ग इंफॉर्मेशन मत दो, जो भी है करेक्ट इंफॉर्मेशन दो। यू विल बी सेफ इन योर लाइफ, विद पेरेंट्स यू विल बी सेफ इन योर लाइफ, विद टीचर यू विल बी सेफ इन द करियर, राइट। जिस बच्चे ने ऑलरेडी ये क्वेश्चन कर लिया है ना पहले बच्चों, उसको हैंड रेज नहीं करना चाहिए। मतलब उसको हैंड रेज करने से क्लास का टेम्परामेंट बिगड़ जाता है ना, कि किसी बच्चों को नहीं हुआ, वो सोचेगा अरे यार मुझसे नहीं हुआ, इससे हो गया। वो सब मत करो प्लीज। अपन लोग को रिजल्ट लेके आना है ना, आप लोग को थोड़ी फैशन शो थोड़ी ऑर्गेनाइज करना है कि इसका हो गया उसका नहीं हुआ। 19 स्टूडेंट्स हैव डन इट। कविश अपने बैच में है क्या? ले लूं क्या इसको? सर थाने से। That is excellent from my side actually. I mean, it's going good. But after 7th property, we will not go for the contents of that differentiation wala part. I will write the remaining content of definite integrations, number 1, and number 2, I will finish one particular part today, which covers a lot of questions of indefinite integration. 26 students have done it. But I'll give you 30 seconds more. That's it. अरे हो गया, टाइम हो गया, 8:16 हो गया ना। So चलो फिर भी 30 सेकंड देखते हैं 30 स्टूडेंट्स को हो जाता है क्या। तो 7 good response actually। मुझे तुम लोग को ये मैंने बताया इस तरह से, ये तो बताया हुआ ना मैंने तुम लोग को, जैसे ये ग्राफ बना किसका, cos x का। तो देखो ये होता है 1, बराबर ना, ये भी 1 होता है ना बच्चों, 1 विद नेगेटिव साइन, बराबर ना, ये भी -1 और ये 1, बराबर ना बच्चों। पता है कि नहीं तुम लोग को, ये एरिया जैसे ही होते हैं, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। sin x के साथ भी ऐसा होता है ना, देखो sin x में इसका इंटीग्रेशन 2 होता है, उसका इंटीग्रेशन -2 होता है। चाहो तो इंटीग्रेट करके देख लो ना, 0 पाई 2 पाई। जरूरत नहीं पड़ेगी इधर, मैं वैसे ही लिख रहा हूं, मतलब कहीं जरूरत पड़े तो। अच्छा बच्चों, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या, इस क्वेश्चन को 0 to v और v to v plus n पाई,
mod cos x dx plus mod cos x dx. बच्चों what do you say? रिस्पॉन्सिव रहो गाइस, रिस्पॉन्सिव रहो। Yes, sir. ये है ना इसका मतलब। अब बच्चों मुझे एक चीज बताओ, ये वाला पार्ट जो ना ये तुम्हारा किया हुआ है, बताओ इस फंक्शन का पीरियड क्या है बच्चों? पाई पाई पीरियड हो गया ना इसका, Yes, sir. है ना? तो a टू a प्लस एन टी ये हो गया ना। बताओ उसको क्या लिखूं मैं, प्लस कितना लिख दूं बच्चों इसको? n टाइम्स इंटीग्रल N 0 to pi times. n टाइम्स इंटीग्रल 0 टू पाई मॉड cos x बराबर है dx। अच्छा बच्चों, इधर v का रेंज क्या है? पाई बाई 2 से पाई। पाई बाई 2 से पाई के बीच में कोई ऐसा एंगल बताओ जो तुम लोग के दिमाग में जल्दी से आता हो, जल्दी से, जिसको तुम बहुत यूज करते हो। कोई भी एक एंगल बताओ। 3 pi by 4. 3 pi by 2. 2 pi 2 पाई बाई 4 मत बोलना यार, 2 पाई बाई 3। 3 pi by 4. 3 पाई बाई 4 राइट। बच्चों अगर इसको मैं 2 पाई बाई 3 लिखूं, सोचो v को, अगर मैं 2 पाई बाई 3 लिखूं, इसको मैं इरेज करूंगा एक्चुअली, तो बच्चों बताओ 0 टू 2 पाई बाई 3 में तुम मॉड cos x को कैसे डायरेक्ट इंटीग्रेट करते हो क्या? No, sir. 0 to pi by 2 फिर pi by 2 to ब्रेक करते Yes. हो ना? कहाँ ब्रेक करते हो बच्चों बताओ? Pi by 2. pi by ये साइन चेंज पाई बाई 2 पे ब्रेक करते हो बराबर। तो जो कैन आई राइट दिस, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड वाला तो इरेज करते हैं हम लोग, इसकी जरूरत नहीं है। सो गाइस कैन आई राइट दिस 0 टू पाई बाई 2, 0 टू पाई बाई 2 में मॉड cos x क्या होगा बच्चों? cos x cos है dx प्लस पाई बाई 2 टू पाई में मॉड cos x क्या होगा बच्चों? minus pi by 2 to से v होगा। अरे सॉरी, पाई बाई 2 से v होगा। पाई बाई 2 से v क्या होगा बच्चों? माइनस होगा ना, Yes, sir. माइनस cos x dx। अरे बाबा v का वैल्यू 2 पाई बाई 3 है, तो 0 टू पाई बाई 2 और पाई बाई 2 टू 2 पाई बाई 3 जाएगा ना ये। बच्चों क्या बोलते हो गया ना क्वेश्चन? ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा नहीं हो जाएगा बताओ? इंटीग्रेट करके लिमिट्स तो लिखनी है, ये तो पता ही है मेरे को, ये कितना होता है पता है ना? 1 होता है और ये। 1 इसको इंटीग्रेट करके अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लिख देंगे तो काम हो जाएगा। बच्चों एक बात बताओ, ये भी पता है ना कैसे ब्रेक होएगा? Yes. 0 टू पाई बाई 2 और पाई बाई 2 से पाई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा ब्रेक? इसके बाद मुझे लगता है क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। किसी को कंप्लीट सॉल्यूशन चाहिए तो बच्चों बता सकते हो, किसी भी बच्चे को इसका फाइनल सॉल्यूशन चाहिए तो यू कैन टेल मी। और ये तो तुम लोग का ग्रुप तो बहुत अच्छा है, मैंने देखा है ग्रुप पे कभी कभी, नोट रोज तो होना भी नहीं चाहिए वैसे, लेकिन कभी कभी कोई स्टूडेंट क्वेश्चन डालता है तो उसका आंसर बच्चे लोग देते हैं। सो अगर फिर भी प्रॉब्लम आएगा तो आप ग्रुप पे डिस्कस कर लो। ग्रुप आजकल मैं चेक कर रहा हूँ, कुछ गड़बड़ होगी तो आई विल हेल्प यू। सर एक बार रिपीट करेंगे, हमने बीच वाला टर्म कैसे स्प्लिट करेंगे? ये वाला सर नीचे वाला जो बीच में है ना, माइनस cos x वाला। हाँ ये सर। वाला अभी इसको स्प्लिट क्या करना है? इसको क्या लिखेगा बता? cos x का इंटीग्रल sin x और pi by 2 to v खत्म। और पाई बाई 2 टू v खत्म। ओके सर गॉट इट बच्चों? इज दिस क्लियर टू यू? सर हम इसे 0 to n pi और n pi to n pi plus v भी स्प्लिट कर सकते हैं। अच्छा तू ऐसे कर रहा है, ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। बच्चों ध्यान दो, वो क्या बोल रहा है? वो बोल रहा है कि सर 0 टू n पाई मॉड cos x ऐसे लिख दिया उसने, और फिर प्लस n पाई टू n पाई प्लस v dx, ये ऐसे लिख दिया। तो बच्चों वो भी ठीक है ना, प्रॉपर्टी में ही आ गया ना मॉड cos x। बच्चों ऐसे भी अरे ब्रेक करने को तो ऐसे ब्रेक कर ही सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन ब्रेक करना गलत भी नहीं है बच्चों। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है एक्चुअली। आर यू क्लियर? किसी बच्चे को डाउट है इसमें? तो सेकंड हाफ में प्रॉपर्टी कैसे सेकंड वाले प्रॉपर्टी कैसे लगाएंगे सर? देख ये तो लग जाएगी ना, यहाँ तो लग जाएगी, बताइए सर। सर वो फर्स्ट हाफ हो जाएगा, सेकंड हाफ नहीं कर पाएंगे। यस सर, सेकंड हाफ नहीं हो रहा। अब सेकंड हाफ की बात करते हैं। n पाई में n की कोई वैल्यू ले, वैल्यू चूज कर, 1 चूज कर ले, समझने के लिए। पाई टू पाई प्लस v ले ले बच्चों, उसको मानते हो? अभी वाला ग्राफ देखो,
ये cos x का ग्राफ है। इधर में ये 0 और यहाँ पाई है, राइट। पाई टू पाई प्लस वी, v का वैल्यू है कितना, π/2 और पाई के बीच में, बराबर ना। तो v आएगा π/2 के बाद, मतलब ये यहां से डिस्टेंस लेंगे तो बच्चों π/2 डिस्टेंस, ये पूरी डिस्टेंस कितनी जा रही है पता है, ये डिस्टेंस p2v प्लस π/2। मुझे एक बात बताओ, इसका ये n पाई से n पाई प्लस v जो मैं ले रहा हूं बच्चों, इसको मैं 0 टू v मॉड cos x dx नहीं लिख सकता। तुम यही बोल रहे हो ना कि ये समझ में नहीं आ रहा कैसे आया। क्योंकि वो n के वैल्यू पे डिपेंड करेगा, आइदर पॉजिटिव आ सकता है इसका वैल्यू या नेगेटिव। नहीं 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 नहीं, किसी पे डिपेंड नहीं करेगा, n की पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यूज पे डिपेंड करेगा ही नहीं है सर आइदर एरिया पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा ना। सुन यार, सुनना मेरी बात तो सुन। cos n पाई प्लस थीटा क्या होता है, चल बता। तो माइनस, या तो माइनस होता है या प्लस होता है, बराबर है ना। हाँ सर, या तो माइनस cos थीटा होता है या प्लस cos थीटा होता है, दोनों में से एक होता है, सही है सुन। यस सर। बच्चों सब लोग ध्यान दो, पता है इस तरह के क्वेश्चन पूछने से आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा सीखने को मिलता है। आप सब लोग मुझे बच्चों ये चीज बताओ, ये वाली चीज बताओ कि ये जो इंटीग्रल मैं इधर एक्स्ट्रा लिख रहा हूं, a प्लस बी टू ए प्लस सी, राइट। और बच्चों यहां लिख दिया f ऑफ x प्लस x माइनस ए dx। बच्चों अगर मैं x माइनस ए को t ले लूं, ध्यान देना, x माइनस ए को t ले लूं, तो ये जो लिमिट बन जाएगी, ये b टू c f ऑफ t dt बन जाएगी, जिसको मैं f ऑफ x dx लिख सकता हूं वापस। बोलो बच्चों यहां से यहां ये ठीक है क्या? वैसे भी ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन से तुम सीख सकते हो ना ये चीज। बोलो बच्चों। यस अच्छा इसमें पता है क्या है, इसमें इसको इस तरह से सीखो, इस प्रॉपर्टी को, कि प्रॉपर्टी नहीं है ये एक रिजल्ट है, जो मतलब बड़ा इजी सा रिजल्ट है कि अगर मैं x को यहाँ x प्लस ए से रिप्लेस करूं, मतलब अगर मैं यहाँ a ऐड करूं बच्चों, इधर में मैं a ऐड करूं तो लिमिट्स में a सब्ट्रैक्ट करने से आंसर सेम ही आता है, से यस और नो बच्चों? यस सर। यस सर। बराबर। अब मुझे एक चीज बताओ, इधर में मैं n पाई सब्ट्रैक्ट करूं, यहां से दोनों जगह लिमिट में n पाई ऐड सब्ट्रैक्ट करूं, तो बच्चों यहाँ क्या होगा, n पाई ऐड होगा कि नहीं होगा बताओ? x प्लस n पाई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस सर। जिस बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था उससे बात कर रहा हूँ, x प्लस n पाई हो जाएगा। हाँ सर। अब बेटा मुझे बता, cos ऑफ n पाई x प्लस n पाई क्या होगा? मॉड cos ऑफ x प्लस n पाई, बता। मॉड cos x ही बनेगा ना? हो जाएगा। इसका मतलब तू ये जो यहाँ ये कर रहा है, इसको तो 0 टू v मॉड cos x लिख सकता है, नहीं लिख सकता है? सही है सर? यस सर, यस सर। आगे समझो, मतलब ये क्वेश्चन फॉर्चुनेटली मॉड होने की वजह से हमें दिक्कत नहीं दे रहा है। हैव यू अंडरस्टूड दिस? सो वैसे भी cos x मॉड cos x का पीरियड पाई है ना, तो n पाई तो ऐड सब्ट्रैक्ट कर ही सकते हैं लिमिट्स में से। ठीक है ना, अभी मतलब n पाई ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, सीधी सीधी कहानी है। एक बार बताओ, ये तो पीरियोडिक नहीं था ना, और फंक्शन कोई भी हो सकता है। हाँ सर। फंक्शन के बारे में तो बात ही नहीं की ना। तो अगर मैं a सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं तो यहाँ, सॉरी ऐड कर रहा हूं तो यहाँ सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ ना बच्चों, बराबर है? यस सर। फर्क नहीं पड़ता है। चलो ठीक है, यहाँ पे अलग से करके दिखा दिया है, अदरवाइज फर्क नहीं गिरता है। ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना बच्चों एक्स एक्सिस पे, उससे भी देख सकते हो तुम लोग। कोई डाउट है क्या किसी को इसमें? सर एक बार आप एक्स्ट्रा वाला पार्ट एक बार आप एक्सप्लेन करेंगे? मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे एक काम कर, x माइनस ए को t डाल, तो बता dx क्या बन गया, dt। पता लिमिट्स क्या बन गई? जब x की जगह a प्लस बी डालेगा, x की जगह a प्लस बी डालेगा b आ जाएगा, तो b आ जाएगा ना, फिर वापस t को x रख देंगे और तो ये c आ जाएगा।
और ये कितना बन जाएगा एफ ऑफ टी डी टी, और टी को वापस एक्स लिख दे तो आ जाएगा ना सेम रिजल्ट। तो बता पीरियोडिसिटी का कोई चक्कर पड़ रहा है क्या इधर? नहीं सर। नहीं, मतलब हमेशा कर सकते हैं ना ऐसा? हाँ सर। हाँ दैट्स इट। ये तो मतलब एज अ रूल हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं, बट ये फंक्शन की प्रॉपर्टी है बच्चों, अगर तुम थोड़ा ध्यान दोगे तो फंक्शन की प्रॉपर्टी है। अरे बाबा तुम लोग को ये एरिया निकालना है, ये एरिया निकालना है ये। अब इस एरिया को तुम हिंदुस्तान में निकालो चाहे पाकिस्तान में निकालो, अगर एक्सिस का मेजरमेंट ठीक लिया है तो ये एरिया किधर गड़बड़ नहीं देगा ना बच्चों। इसको के यूनिट से ऊपर शिफ्ट कर दो, राइट, तब भी दिक्कत नहीं होगा, नीचे शिफ्ट कर दो तब भी दिक्कत नहीं होगा, लेफ्ट में ले आओ तब भी नहीं, राइट में ले आओ तब भी नहीं, बराबर है ना। एरिया तो सेम ही रहने वाला है ना। ये पूरा का पूरा एरिया उठा करके, मतलब इट इज समथिंग लाइक हट, ये आपका एक काम करो, इसको उठा करके अपने घर ले जाओ, मतलब मेरे घर से अपने घर, एरिया थोड़ी चेंज हो जाएगा। तो हम लोगों ने क्या किया इस क्वेश्चन में, क्या किया बताओ, इसको उठा के एक्स एक्सिस पे शिफ्ट ही तो किया है। अरे बाबा ये तो किया है बच्चों। साइन ऑफ एक्स प्लस 2 और साइन एक्स के ग्राफ में क्या डिफरेंस होता है? साइन एक्स के ग्राफ को 2 यूनिट से लेफ्ट में शिफ्ट करते हैं ना बच्चों? Yes, sir. बराबर ना? Yes, sir. This is what we are doing. Have you all understood, guys? Just tell me fast. सर एक चीज कंफर्म करनी थी बस, बोलो। तो अंदर अगर ऐड करेंगे तो बाहर सब्ट्रैक्ट करेंगे एंड वाइस वर्सा, है ना? एंड वाइस वर्सा, एंड वाइस वर्सा। ओके सर। काम आ जाता है क्वेश्चंस में, ठीक है? तो दिस इज व्हाट वी हैव डन। गाइस प्लीज टेक अ पिक्चर। Yes, sir. All right, guys, this is 7th property over। प्रॉपर्टी 7th और 6th पे डिपेंडेंट कुछ 4-5 प्रॉब्लम होंगी बच्चों, बस इससे ज्यादा नहीं। प्रॉपर्टी 5 पे तो बहुत सारी थी एक्चुअली। अच्छा, हम लोगों ने प्रॉपर्टी 5 पे सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए ना गाइस? Yes, sir. Last. Yes, sir. नहीं उसके पहले। ठीक है ठीक है ठीक है बच्चों, कंटेंट वाइज ध्यान रखो। एक तो कुछ कंटेंट्स बचे हुए हैं अभी, ये पॉइंट नंबर 1 है जो आज हम कंप्लीट कर जाएंगे, राइट? फिर क्या क्या बचा हुआ मैं लिख रहा हूं इधर। एक बचा हुआ है डेरिवेटिव ऑफ इंटीग्रल्स। ये किया है हम लोगों ने, याद करो। Yes, sir. लिमिट्स में किया है, डन इन लिमिट्स। लेकिन बच्चों मुझे इसको रिवाइज कराना है विद 1 और 2 एग्जांपल क्लास में। 1 और 2 नहीं, शायद 3 एग्जांपल्स। एंड बच्चों एक ये याद करो, समेशन एफ ऑफ एन बाई आर, सॉरी आर बाई एन एंड 1 बाई एन, R1 to n और लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी। बच्चों किया है ना ये भी, सिग्मा टू इंटीग्रेशन, डन इन इंटीग्रेशन। लेकिन बच्चों ये भी डेफिनेट इंटीग्रेशन का एक पार्ट है, तो इसको हम क्लास में करेंगे। 3-4 एग्जांपल्स करने हैं इसके। बच्चों 4th हो गया सीरीज समेशन। तुम्हें ज्यादा लग रहा है लेकिन ये हुए कि लेक्चर में जाएगा सब। सीरीज समेशन यूजिंग डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, इसमें 15 मिनट लगेगा। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, एक ये पार्ट बचा है। और बच्चों एक पार्ट बचा हुआ है आउट ऑफ जेई सिलेबस। अब तुम बोलोगे ये पहली बार आप करवा रहे हो, लेकिन बच्चों मैं बोल रहा हूं ये आउट ऑफ जेई सिलेबस वाला पार्ट है ना, दैट इज मॉडिफाइड लेबनीज रूल है। मतलब मॉडिफाइड नहीं लिखना चाहिए, एक्स्ट्रा लिखना चाहिए, एक्स्ट्रा वो करना है। वो आप लोग मुझे याद नहीं दिलाओगे, मैं खुद ही करवा दूंगा इसको। बच्चों 5 कंटेंट है जिसमें ये आज पूरा होगा और ये सब नेक्स्ट लेक्चर में पूरा हो जाएगा। ये हो सकता है बच जाए एरिया अंडर द कर्व के लिए, बाकी सब पूरे हो जाएंगे। अब जो इसमें एक चीज जो है ना वो है एस्टिमेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स, जो आपकी बुकलेट में है। करीब करीब 15 से 20 सम्स हैं, लेकिन वो मैं हमेशा एरिया अंडर द कर्व में सिखाता हूँ, ठीक है? इधर में नहीं सिखाता हूँ, तो उसके हेडेक मत लेना। वो बुकलेट में मैं मार्क करा दूंगा, ये क्वेश्चंस नहीं करने, ठीक है? दैट वे। तो जो ये कंटेंट्स में हम लोग अभी जा रहे हैं, दीज आर वेरी इजी कंटेंट्स, जिसपे एक एक दो एग्जांपल जरूरत होगा तो हम लोग लेंगे। सर जेंसन इनइक्वालिटी भी रह गया था, अभी तक भी रह गया था क्या? नहीं यार कर लिया ना? Yes, sir. We are left with Jensen inequality बाकी है। अच्छा तुम लोग को बच गया था क्या?
तुम लोग का Yes, लेक्चर sir. थोड़ा बढ़ाएं क्या? Yes, sir, कम एक है. लेक्चर बढ़ना चाहिए, तुम्हारा ही कम हो रहा है बस, बाकी सब 25 सर बैचेस आपका कम सर, दूसरे बैचेस में आपके ज्यादा लेक्चर्स होते हैं हर वीक में शायद. नहीं 3 लेक्चर, 3 4 5 में 3 लेक्चर है नहीं, बट ठीक है। इसको कोई एक पिक्चर लेके डाल दो ना यार, ताकि हम लोग को पता रहेगा। जेंसन मैं करा दूंगा यार, टेंशन मत लो, सिलेबस टाइम से पहले ही खत्म हो रहा है हम लोग का, जेंसन कर लेंगे ना, ठीक है। ये इरेज कर दूं क्या? जेंसन का कोई क्वेश्चन अभी तक तो आया नहीं, कम ऑन, किसी भी चैप्टर के किसी भी क्वेश्चन में नहीं आया है, तो वो हेडेक नहीं है, वो मैं कराऊंगा, लेकिन वो अच्छा है, मतलब उसको करना चाहिए। उस पर डिपेंडेंट आईआईटी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है, और आईआईटी में कुछ क्वेश्चन ऐसे इनइक्वालिटीज के आते हैं जो जेंसन से जल्दी हो जाते हैं, इसलिए उसको कर लेना चाहिए। सो ये हो गया क्या? कौन ले रहा है यार? वो नाम भी पता नहीं है कौन ले रहा है। सर ले लिया. अच्छा प्रियांशु, ओके थैंक यू। बच्चों सब लोग ध्यान दो, 1 बाय 1 सारे कंटेंट्स पे ध्यान दे दो एक बार। देखो ये तो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, इसको मैं कंटेंट नहीं बोलूंगा, इसको मैं रिवीजन बोलूंगा, जो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। बताओ बच्चों इसका क्या फॉर्मूला था, इंटीग्रेशन यूवी डीएक्स ए टू बी में? यू एज इट इज इंटीग्रल वी डीएक्स था ना, यही? Yes, sir. 0 to pi by 2 या ओ सॉरी ए टू बी, है ना? और इसके बाद था माइनस इंटीग्रल ए टू बी यू डैश इंटीग्रल वी डी एक्स। क्या पढ़ाया हुआ है यहाँ पे कि भाई यहाँ लिमिट्स नहीं आती हैं, यहाँ लिमिट्स नहीं आती है, इस पर लिमिट नहीं आती है, करवाया हुआ है ना ये पहले, इसलिए इसको मैं कंटेंट नहीं बोलूंगा। आई रिपीट, मैं इसको कंटेंट नहीं बोलूंगा। ओके, अब सब लोग ध्यान दो, कंटेंट नंबर 1, बच्चों ये है ना, ये बड़ा इजी सा कंटेंट है, इस पर ज्यादा दिमाग मत लगाओ। लिमिट एन अप्रोचिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी, आई रिपीट, लिमिट एन अप्रोचिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी में इंटीग्रेशन दिया हुआ है कुछ ए टू बी, और बच्चों अंदर एफ एन एक्स ऐसा कुछ दिया हुआ है। अब इस पे कंफ्यूज मत हो जाओ, इसका मीनिंग है कि ये जो यहाँ लिखा हुआ है ना बच्चों, इसमें एन और एक्स दोनों की टर्म्स है, मतलब यहाँ एन और एक्स दोनों की टर्म है, लेकिन बच्चों इसको इंटीग्रेट किसके रिस्पेक्ट में करना है? एक्स के रिस्पेक्ट में करना है। तो हम लोग ये बोल रहे हैं कि भाई एक बार अगर तुम समझते हो कि ये बहुत इजीली इंटीग्रेट हो जाएगा, ये एन डिस्टर्ब इसको नहीं करेगा, तो बच्चों इंटीग्रेट कर लो इसको, क्या इश्यू है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डाल दो, तो बताओ आंसर किसके टर्म्स में आएगा? एन के टर्म्स में आएगा ना? यस सर। बराबर ना? सब बच्चे सुन रहे हैं ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं? अगर ये इंटीग्रेट हो जाएगा तो इसको इंटीग्रेट करने के बाद, आई रिपीट, इंटीग्रेट करने के बाद अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट विल गिव यू द आंसर इन टर्म्स ऑफ एन, और फिर एन टेंडिंग टू इंफिनिटी के लिए सॉल्व कर दो। बच्चों एन तो इफेक्ट कहीं करेगा ही नहीं, क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, तो ये तो कांस्टेंट है। तो क्या मैं बच्चों इसको ऐसे कर सकता हूं, ए टू बी लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी एफ एन एक्स डी एक्स? बताओ कोई डिफरेंस नहीं है। पहले लिमिट सॉल्व कर लूं, फिर जो आता है उसको इंटीग्रेट कर दूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बोलो बच्चों। Yes. You can use it as a point number 1, point 1। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो सोल्व कर लो बच्चों। हर एक पॉइंट पे जेई एडवांस या जेई मेंस का कोई क्वेश्चन तो सॉरी इसमें नहीं है, सारे जेई एडवांस के ही है। जेई एडवांस का हर एक में एक क्वेश्चन, सिर्फ डेटा चेंज करना है, जो मैं आपको 1000 बार शायद बोल चुका हूं कि डेटा चेंज करने के पीछे सिर्फ यही लॉजिक रहता है कि जब हम पास्ट ईयर्स के पेपर सॉल्व कर रहे होते हैं, सेम डेटा आएगा तो तुम लोग डायरेक्ट आंसर लिख दोगे, और अननेसेसरी मार्क्स आ जाएंगे जो तुम्हें लगेगा कि तुम्हारा हो, तुम तो विद्वान हो गए, वो नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं ज्यादातर क्वेश्चन में डेटा चेंज करता हूँ, ज्यादातर में। कुछ में जो पॉसिबल नहीं होता, जैसे वो 0 to n pi प्लस साइन वी वाला जो क्वेश्चन था, वो एचटीसी मेरे को देना पड़ा, क्योंकि उसमें प्रूव दैट कुछ लिखा हुआ था, राइट? तो बच्चों ये जो क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं ना, थोड़ा ध्यान दे दो। मेहनत करने वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा घिसने वाला मैं मान सकता हूँ, बट यस यूटिलाइज्ड अच्छे से हो रहा है क्वेश्चंस में। मतलब तुम लोग को थोड़ी परेशानी दे सकता है इन द सेंस
और जो क्वेश्चन उसने पूछा पता क्या है, वो बोल रहा है माइनस ए रेज टू पावर 1/3 टू ए रेज टू पावर 1/3, राइट। और ये दे रहा है 1 माइनस टी क्यूब बाई एन रेज टू पावर एन टी स्क्वायर dt। और जो किया हुआ है तुम्हारा क्वेश्चन, अगर तुम थोड़ा भी ध्यान दो तो इसका वैल्यू दिया हुआ है, सॉरी इसका वैल्यू दिया हुआ है, इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, लेट मी चेक। अच्छा, इसका वैल्यू दिया हुआ है 2√2/3। बच्चों फिर पता है क्या पूछा है, फाइंड ए। अब फाइंड ए मैंने लिखा है, उसने ऑप्शंस लिखे हुए थे, आई एम सॉरी आई एम नॉट राइटिंग द ऑप्शंस, ठीक है बच्चों ध्यान दो। So for n tending to infinity ना. इसे एंटेंडिंग टू इन्फिनिटी अरे होना चाहिए सॉरी ना? सॉरी आई हैव नॉट रिटन एन टेंडिंग टू इंफिनिटी। बच्चों एन टेंडिंग टू इंफिनिटी के लिए मैं पहले लिमिट सॉल्व कर लूं तो मजा आएगा ना। देखो यस Yes, सर, sir. टी के टर्म्स में आ अच्छा, जाएगा। ये क्या बन रहा है, ये कौन सी इंडिटरमिनेट फॉर्म बन रही है बच्चों? 1 to the power infinity. 1 टू द पावर इंफिनिटी का आंसर, ये 1 टू द पावर इंफिनिटी फॉर्म है, इसका आंसर आना चाहिए e टू द पावर l। टी और l क्यूब कितना आएगा बताओ? T cube. टी क्यूब गधेड़ा माइनस टी क्यूब, माइनस टी क्यूब माइनस टी क्यूब Sorry, minus T cube. माइनस टी क्यूब। सॉल्व करने के लिए थोड़ा टाइम दे सकते हो क्या? नहीं अभी टाइम देना, ये ऐसा क्वेश्चन है नहीं, मैं दूंगा टाइम जब क्वेश्चन रेलेवेंट होगा ना, मुझे लगेगा कि कुछ चैलेंजिंग सा है इसमें, तब देंगे ना टाइम, अदरवाइज क्यों टाइम वेस्ट करेंगे, बराबर ना। अरे भाई दिख रहा है, तुम सब बच्चों को दिख गया कि ये 1 टू द पावर इंफिनिटी फॉर्म है, ये थ्योरम लिख दी, उसके बाद तो इसमें क्या ही करना है, अभी सॉल्व करने के लिए टाइम दो। अभी क्या बन गया बच्चों बताओ, इसको क्या लिख दूं मैं, माइनस ए रेज टू पावर 1/3 टू ए रेज टू पावर 1/3, बराबर है ना। अंदर कितना बच गया, ई रेज टू पावर माइनस टी क्यूब, ये ई रेज टू पावर माइनस टी क्यूब, ये तो गया ना, ये तो और हो गया ना बच्चों। इनटू क्या आएगा बताओ बताओ बच्चों, टी स्क्वायर dt इज इक्वल टू 2√2/3। बच्चों तुम्हें क्या लगता है, तुम ए निकाल नहीं पाओगे इसमें, ऐसा लगता है आएगा ना ए का वैल्यूज? अरे बाबा इसमें तो ये तो बहुत सिंपल इंटीग्रल हो गया ना, बताओ क्या करोगे, प्रिंट करो। T cube को U ले लेंगे. को यू ले जब ले। टी क्यूब को यू लोगे तो ये माइनस ए टू ए बन जाएगा ना, लिमिट भी। Yes, sir. बस ए में क्वाड्रेटिक आएगा, ए की वैल्यूज आ जाएंगी। और बच्चों जो ए की वैल्यूज आ रही है ना, वो मैं तुम लोग के सामने लिख रहा हूँ इधर, पता है कौन कौन सी वैल्यूज आ रही हैं। ए इज इक्वल टू ln √2 प्लस √3, ln √2 माइनस √3, √2 माइनस √3, ये तो रिजेक्ट हो जाएगी, राइट। और जो वैल्यूज आती हैं वो वैल्यूज मैं लिख रहा हूं इधर, ln 2√3 माइनस 3, ln 2√3 माइनस 3 और ln √2। अच्छा ये दोनों आंसर रॉन्ग है। पता है एक स्टूडेंट को इतनी फुर्सत नहीं मिलती है, मैंने आई मीन इट्स नथिंग लाइक यू नो दैट आई एम टॉकिंग अबाउट योर बैच और सम स्पेसिफिक स्टूडेंट, आई एम टॉकिंग इन जनरल। मतलब इन माय एंटायर करियर आई हैव सीन लाइक एवरी ईयर आई गेट सम 10-12 स्टूडेंट्स जो मैं जब बोलता हूं तो वैसा कर लेते हैं कि चलो करते हैं ना यार, देखते हैं ना सर क्या बोल रहे हैं। मुझे कभी ऐसा हुआ है तुम लोग के साथ में कि मैं बोलूं कि यार ये दो आंसर भी रॉन्ग आते हैं, जरा सोचना और ध्यान से जवाब नहीं देना है, सोचना है इस चीज को कि ये दो आंसर रॉन्ग भी आते हैं। मैं लिखता हूं, कई बार लिखता हूं इस तरह से। क्या तुम ऐसा कभी कोशिश करते हो कि यार कौन ऐसा इडियट है जिसने क्या गलती करी होगी जिससे इसका ये वाला आंसर आया है? बच्चों अगर तुम ये ढूंढ लोगे ना, मतलब तुम टारगेट बना लो कि हर चैप्टर में 2-3 क्वेश्चन, सर तो 25-30 क्वेश्चन कराते हैं, लेकिन मुझे 2-3 क्वेश्चन ऐसे जरूर करने हैं जिसमें सर ने बताया ये 4 मिस्टेक्स भी होती हैं, राइट। इसमें से मेरा आंसर तो करेक्ट आ गया। अब ये 4 मिस्टेक जो होती हैं वो किसी बच्चे ने क्या गलती की होगी जिस वजह से 4 मिस्टेक ली है। बच्चों ये तुम्हें इन द टाइम ऑफ स्टडीज, मतलब सिलेबस जब तक पूरा नहीं होता है ना तब तक तुम्हें करना है, उसके बाद नहीं करना है। उसके बाद तो तुम्हारे ग्रुप्स बन जाते हैं 10-10, 12-12 बच्चों के, तुम लोग डिस्कस करते हो तो पकड़ में आता है, राइट।
बट एट दिस मोमेंट यू शुड गो फॉर दैट। अगर टाइम मिलता है तो, वैसे नहीं फिजिक्स केमिस्ट्री सफर कर रहा है और ये सब काम में लगे नहीं रहना है, लेकिन बच्चों इट्स अ गुड हैबिट, आई विल टेल यू, दिस इंप्रूव्स यू लॉट, दिस इंप्रूव्स यू इन द सेंस ऑफ इनोवेशन एक्चुअली, कि यार एक बच्चा ये गलती किया तो उसको ये आंसर आ गया, और वो बच्चा खुद ही बता देगा तो तेरा दिमाग ठस हो गया। डू यू अंडरस्टैंड हिंदी प्रॉपर्ली? ठस हो गया। कोई मुझे बता सकता है इसका मीनिंग? बर्बाद हो गया। हाँ एग्जैक्ट। ब्रेन स्पॉइल्ड मींस यू आर स्पॉइल्ड। आप लोगों को ये इनोवेशंस में जाना चाहिए जब जब टाइम मिले तब, मेरा मानना है। बच्चों इसमें एक आंसर मैं निकाल के दे रहा हूं कि तुम लोग कर लोगे, क्योंकि आंसर तो मैंने बता दिया है कौन सा वाला आंसर है। दिस इज योर आंसर। कैन आई लीव दिस? हो गया सर। अच्छा आ भी गया, आयुष ने जवाब दे दिया, आ गया। मतलब किसी को अगर नहीं होगा तो आयुष आंसर लिख के भेज देगा, बोर्ड मतलब ग्रुप पे डाल ही देगा। बच्चों प्रियांशु बेटा फटाफट स्क्रीनशॉट। Sir, I've already taken. ओके थैंक यू। बच्चों पॉइंट नंबर 1, इसके जितने भी पॉइंट्स हैं ना गाइस, एक बात ध्यान रखना, सारे पॉइंट्स बड़े इजी से पॉइंट्स हैं, बड़े एलिमेंट्री से पॉइंट्स हैं, बट पॉइंट सारे करने हैं, छोड़ना कुछ भी नहीं है। 4 ही पॉइंट है, फटाफट खत्म हो जाएंगे। इस पे क्वेश्चंस बहुत सारे हैं लेवल 1 2 3 में एक्चुअली, इसलिए मैं करा रहा हूँ ये सब। बच्चों पॉइंट नंबर 2 पे थोड़ा ध्यान दो, कंसेप्शनल नहीं है, बकवास सही है, बट पॉइंट पे ध्यान देना जरूरी है। पॉइंट नंबर 2, अच्छा ये जो होता है ना a to b f of x dgx, कोई मुझे बता सकता है इसका मीनिंग क्या है? सोचो। सर dx to dgx है फिर। d of I'm sorry my bad। सर f of x को gx की टर्म्स में लिखेंगे तो इट इज इक्विवेलेंट टू dx हो जाएगा, उस फिर वैसे इंटीग्रेट करेंगे। मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ, पता है ये क्वेश्चन में, ये वाले क्वेश्चन में तुम इंटीग्रेट कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू जीएक्स, तो बताओ ये लिमिट्स किसकी है बच्चों? एक्स की लिमिट है कि किसी और कोई लिमिट को एक्सप्रेस कर रहा है? gx के लिमिट है, gx इक्वल के लिमिट है, जीएक्स के लिमिट है। बच्चों एक बार बताऊं, आईआईटी हिस्ट्री में एक क्वेश्चन ऐसा आया था, मुझे ईयर याद नहीं है राइट, तो मैं उसको क्लेम नहीं कर पा रहा हूं अभी, बट आई रिमेंबर द क्वेश्चन, आई लेट यू नो इन 1 or 2 मिनट्स। बच्चों एक बार बताओ, अगर इसकी जगह में ऐसा होता, ऐसा मतलब वही क्वेश्चन, सेम ही क्वेश्चन बात कर रहा हूं, कुछ मानो 1/2 to 1 कुछ ले लो यार, 1/2 से बड़ा 3/4 ले लो, चलो कुछ यहाँ पे फंक्शन लिखा हुआ है fx, मुझे एग्जैक्ट क्वेश्चन याद ही नहीं है, मतलब d ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, क्योंकि लड़ाइयाँ बहुत हुई थी, सब्जेक्टिव में क्वेश्चन था, फिर उसको आईआईटी ने बोनस ही कर दिया उठा करके। मुझे एक बात बताओ, इस तरह का कोई क्वेश्चन बन सकता है? fx कुछ भी हो, उससे जाने दो। सर g of x को 1 1 होना पड़ेगा। हाँ बच्चों एक बात बताओ, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x अगर हाफ हो गया तो x का वैल्यू क्या आएगा? इनफाइनाइट आंसर्स आ सकते हैं ना यहाँ पे। बच्चों क्या यार, आप तो यस यस सर। अरे हाँ सर, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x अगर हाफ हो गया तो x की तो कोई भी वैल्यू डाल दो, क्वेश्चन पे क्वेश्चन बनाता ही चला जाएगा ये, मानते हो ना बच्चों? यस सर। इसका मतलब यहाँ जो फंक्शन लिख रहे हैं वो कैसा फंक्शन होना चाहिए कि इसको मैं जब यहाँ इक्वल टू करूं तो उसका एक ही आंसर आना चाहिए। इसका मतलब बच्चों इस फंक्शन को कैसा होना चाहिए? 1 1 होना चाहिए कि मैनी 1 होना चाहिए? 1 1 होना चाहिए। 1 1 होना चाहिए ना, gx को 1 1 होना चाहिए बच्चों, ये जरूरी है। क्वेश्चन बनाने वाले ने उस टाइम में थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया और उठा के कुछ गंदा सा क्वेश्चन बनाया था, फिर एंड में लिख के छोड़ दिया उसने, और कोई इंफॉर्मेशन दिया नहीं था, तो सारे बच्चे थक के आ गए और फिर आके बोलते हैं इसका क्या करें? मैंने कहा कुछ मत करो, ये बोनस होने वाला है गारंटीड। ऑब्वियसली इसको 1 1 होना चाहिए, थियरी में हम लोग पढ़ाते हैं। अच्छा इसका जो मीनिंग है ना, वो मीनिंग क्या है पता है? इसका मीनिंग है gx, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या बताओ? यहाँ dx कर दो और यहाँ dx कर दो, यहाँ dx अपॉन dx और इंटू dx, तो बच्चों क्या आ जाएगा? a to b, सॉरी ये नहीं लिखते, ये लिख भी नहीं सकते हैं, fx इंटू, कैन आई राइट इट g डैश x dx बच्चों? अरे ठीक है ना यार, डिफरेंशिएट कर दिया ना बच्चों, क्या दिक्कत है? बच्चों ये लिमिट क्या आएंगी बताओ?
gx इज इक्वल टू a अगर होगा तो x क्या आएगा बताओ जी इनवर्स से आ जाएगा ना बच्चों। अरे यार कुछ जवाब तो ऐसे थोड़ी होता है। यस Yes, सर। sir. Yes, sir. जी इनवर्स से, और ये क्या हो जाएगा जी इनवर्स बी, बराबर है ना। देखो कुछ भी दम नहीं है, कुछ दम ही नहीं है। अब बच्चों मैं तुम्हें एक आया हुआ क्वेश्चन पूछता हूँ, वो सिर्फ इसलिए पूछा गया कि किसी बच्चों को अगर मीनिंग पता हो नहीं होगा तो क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर पाएगा। सब ध्यान दो, इतना चिंदी क्वेश्चन, चिंदी अंडरस्टैंड, यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ चिंदी क्वेश्चन? Yes, sir. इतना सिंपल Silly. मैं किसी एडवांस एग्जामिनेशन में देख नहीं सकता। ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज द क्वेश्चन। वो बोल रहा है पता है क्या, वो बोल रहा है -1 to 1 x स्क्वायर डी एल एन एक्स। अब बच्चे पता है क्या कहाँ कंफ्यूज होते हैं कि यार ln x -1 कैसे हो सकता है। अबे x -1 नहीं हो सकता, ln x तो -1 हो सकता है ना बच्चों। यस सर। हाँ सर। ln x तो -1 हो सकता है ना। तो जो क्या बनेगा बताओ, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, एक्स स्क्वायर। सर dlnx dx दोनों क्यों लिखते हो? हाँ सर, अरे यार dx नहीं मिस्टेक आएगा। से, ओ भाई मिस्टेक, मैंने पिछली बार भी किया था, जय ने करेक्ट कराया मुझे। 1/x, ln x का डेरिवेटिव 1/x, राइट। और बच्चों अब यहाँ dx लिखा मैंने, तो बताओ जो x की लिमिट क्या आएगी जब ln x -1 है, जब e to the ln power x -1 to e. ln x -1 है तो x 1/e आ जाएगा ना। तो ये 1/e आ गया ना बच्चों, और ये कितना आ जाएगा, ये आएगा ना। Yes sir. तो जो आंसर क्या आएगा बताओ चलो। x² by 2 raised minus e to e. x²/2 1/e2e, और फाइनल आंसर क्या लिख दूं, 1/2 e² - 1/e²। बच्चों पकड़ में आया क्या, ये कहानी पकड़ में आ गई क्या? सेकंड पॉइंट नंबर, हाँ बोलो ना। सर एक सिली डाउट था, यहाँ पे हम ऐसे डिफरेंशिएट कर क्यों देते हैं, लाइक इसके पीछे लॉजिक क्या है? अरे बाबा एक बार बताओ, कहीं भी लिखा हुआ है d ऑफ ln x, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, ऑपरेटिंग, इसको बोलते हैं ऑपरेशन विद रिस्पेक्ट टू x। कैन वी राइट इट लाइक दिस? ओके सर, गॉट इट सर। वही वाला काम तो किया उधर, ओके सर। एमओडी में करते थे यार, ये बहुत करते थे, राइट। वो जो पॉइंट नंबर 2 ओवर। पॉइंट नंबर 2 was an easy point. I am going for point number 3. बच्चों पॉइंट नंबर 3 में आप लोगों से मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा, और हुआ ये है प्रीवियस लेक्चर्स में, सब लोग बच्चे ध्यान देना, जितने बच्चे क्लास में प्रेजेंट हैं ये स्टेटमेंट ध्यान से सुनेंगे। आप मुझे बताओ क्लासरूम स्ट्रक्चर में और एग्जामिनेशन हॉल में डिफरेंस क्या होता है? सिर्फ इतनी सी चीज होती है कि क्लासरूम में आप थोड़े कंफर्ट जोन में बैठे होते हो, और एग्जामिनेशन हॉल में आप पैनिक मोड में बैठे होते हो। तो उतना ही डिफरेंस होता है बच्चों, सिर्फ उतना ही डिफरेंस होता है। अब अगर कोई बच्चा, वो जो पैनिक मोड है उसको हटाने के लिए हम लोग पूरी मेहनत करते हैं, वो हम कोशिश करते हैं कि उस टाइम में ऐसा ना जाए, ओके। लेकिन जो बच्चा क्लास में अलर्ट है उसको आईआईटी होना ही होना, मतलब जो बच्चा क्लासरूम नोट्स ठीक से समझ के जा रहा है, उसके प्रैक्टिस में 1000 की जगह 100 क्वेश्चन अगर हुए हैं तो आईआईटी तो जाएगा, रैंक थोड़ा इधर उधर हो जाएगा, दैट्स अ डिफरेंट इशू। तो बच्चों एक चीज समझो तुम, कि अगर मैं क्लेम इस बात को करता हूं, जो मैं बार बार क्लेम करके प्राउडली क्लेम नहीं करता हूं बच्चों, एक बात समझ लो, आई एम द टीचर हु इज अमंग द स्टूडेंट्स। जब मैं कुछ क्वेश्चन पे क्लेम करता हूं ना कि इस क्वेश्चन को इतने बच्चों ने रॉन्ग किया, तो यार तुम्हारे पीछे तो बैचेस हैं भाई, तुम लोग के तो अच्छे दोस्त हैं, और तुम लोग तो बहुत ज्यादा इधर उधर, अभी ऑनलाइन क्लासेस में तो सारे बच्चे ज्यादा से ज्यादा इधर से उधर बातें करते ही हैं। तो इट कैन बी जस्टिफाइड, इट कैन बी वेरीफाइड विद द चिल्ड्रन। और जो क्वेश्चन में पॉइंट नंबर 3 पे लिखने जा रहा हूं, उस क्वेश्चन में होता क्या है, जैसे 40 बच्चों ने क्वेश्चन सॉल्व किया, राइट, सॉल्व हो जाता है ज्यादातर बच्चों से, हाँ 40 क्वेश्चन है बच्चों 5 मिनट का टाइम देता है, 40 बच्चों को सॉल्व हो जाएगा देखना। तो उसमें पता है 15 बच्चों को क्वेश्चन रॉन्ग होता ही होता है। सोचो कि हमें 40 बच्चों का बैच बना है जिसमें ज्यादातर बच्चे आईआईटी जाने वाले हैं, और उसमें से 15 बच्चों का वो क्वेश्चन रॉन्ग हो जाए, तो जिसका रैंक 1 आना है वो तो उठा कर 1 की बात नहीं करनी चाहिए, 1 तकदीर से आता है, 10 से बात करते हैं। जिसका रैंक 10 आना चाहिए वो 20 में भाग जाएगा। एज फार एज डिफरेंस इज कंसर्न, आई हैव शोन यू वन डे, राइट। तो केयरलेस मिस्टेक बच्चों नहीं होना चाहिए,
देखो पॉइंट नंबर 3 पे इतना भाषण देता हूं मैं हर लेक्चर में, कोई भी रिकॉर्डिंग उठा के देख लेना, ठीक है, और उसके बाद भी गलती होती है, सी केयरफुली। मतलब पॉइंट नंबर 3 क्या है? पॉइंट 3 वो बोलता है कि ए टू बी डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। बच्चों अरे वह किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करके और उसको इंटीग्रेट करना है, तो बताओ इसका आंसर क्या आएगा बच्चों? एफ बी माइनस एफ आएगा ना, ये आएगा ना, मतलब फालतू सही है, मतलब बोल रहे हो सर क्यों लिख के दे रहे हो, पता ही है ना, जबरदस्ती टाइम पास कर रहे हो, बराबर ना बच्चों, सिंपल ही है ना। Yes, sir. वही तो मीनिंग होगा। अब इसको ध्यान से सुनना, हाँ, इफ एफ एक्स इज discontinuous, can you please wait a minute? Okay, sir. If fx is discontinuous at x equal to c belongs to a comma b, बच्चों इस इंटरवल में कहीं c पे डिसकंटिन्यूअस है, तो बच्चों कैन आई राइट इट a to c dy dx of fx plus c to b dy dx of fx। बच्चों तुम्हें लगता नहीं अगर मैं यहां लिखूं तो ये एफ ऑफ सी नेगेटिव में आएगा, बराबर ना बच्चों? अरे वाह, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पॉजिटिव में आएगा, राइट, और ये नेगेटिव में आएगा, बराबर ना? हाँ सर। कैंसिल हो जाएगा। तो बच्चों वो तो कैंसिल हो जाएगा ना, कैंसिल हो जाएगा ना। नहीं सर, डिसकंटिन्यूअस है ना। हाँ कैंसिल नहीं होगा बच्चों। एक बात बताओ, अगर वो कैंसिल ही हो जाता तो ब्रेक करने की जरूरत ही क्या बचती? बच्चों ये क्या है पता है? ये C माइनस है, पता है ना? और ये Yes, क्या है sir. बच्चों? ये C C plus. प्लस है। सी प्लस। अगर एफ ऑफ सी प्लस और एफ ऑफ सी माइनस सेम हो जाते तो वो कंटिन्यूस ही हो जाता ना बच्चों। वो कंटिन्यूस नहीं है, इसका मतलब ये डिफरेंस है ना कुछ, ये डिफरेंस है, इसी वजह से तो ये ब्रेक हुआ बच्चों। तो ध्यान रखना है, ऐसे कैंसिलेशन में नहीं जाना है। ये C प्लस और C माइनस का हम लोग को अगर फंक्शन इस तरह के क्वेश्चंस में अगर ये डिस्टर्बेंस आया है तो ये प्लस माइनस लिखना भूलना नहीं है। आई रिपीट, भूलना नहीं है, भूलोगे तो आंसर गलत आ सकता है। तुम उन 15 बच्चों में जा सकते हो जिनकी मैं बात कर रहा हूं आउट ऑफ 40, बराबर है बच्चों? इतना समझाने के बाद भी गलत करोगे ना तो अच्छा नहीं होगा। हाँ, अब जय कुछ पूछ रहा था पहले उसका, फिर तुम्हारा क्वेश्चन ले लेता हूँ। हाँ वो बोलो। नहीं सर, लाइक उतने बोलना था कि वो dx भी आएगा ना, तो इंटीग्रल अब हो डीएक्स जाता है। क्यों आएगा? सर वो सिर्फ फंक्शन रखा है आपने, किसी का तो रिस्पेक्ट में आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा ना। इसको तो डिफरेंशिएट करेगा। अरे यार छोड़ देना उसको, उस चीज को छोड़ दे, ठीक है? दैट्स वेरी एलिमेंट्री पॉइंट, राइट? हाँ सर। किसी दूसरे स्टूडेंट का क्या क्वेश्चन था? यस सर, मैं पूछ रहा था कि सर अगर मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी का केस हुआ यहाँ, जहाँ पर एफ ऑफ सी माइनस इक्वल टू एफ ऑफ सी प्लस ही है, बट सी पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो फिर क्या करेंगे? मुझे क्या पता क्या करेंगे, क्वेश्चन आएगा तब करेंगे ना। कंटिन्यूटी का क्वेश्चन तुम इंटीग्रेशन में मुझसे पूछोगे तो मैं ये जवाब दूंगा ना अपनी तरफ से, देखो क्या करना है। मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी आएगा, उसमें क्या करेंगे, ये क्वेश्चन आएगा तब देखेंगे, अभी तो कैसे देख सकते हैं? अब बता, 1/x लिखूंगा तो मिसिंग पॉइंट थोड़ी रह जाएगा, तो वो तो बन जाएगा क्या, y इक्वल टू 1/x, x इक्वल टू 0 पे मिसिंग पॉइंट थोड़ी होता है। इनफाइनाइटली मतलब नॉन रिमूवेबल इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी होता है ना। यस सर। हाँ, अब मिसिंग पॉइंट क्या आएगा ये तुम जानो। अच्छा एक बात बता, मिसिंग पॉइंट कैसे आ सकता है? C प्लस और C माइनस है ना, C पे तो वैल्यू निकाल नहीं रहे ना। सर जैसे C माइनस और C प्लस की अगर एफ ऑफ C माइनस एफ ऑफ C प्लस अगर गधेड़ा, सेम होगा तो ये मान ले ये ग्राफ बना, अब बता x इक्वल टू C पे मिसिंग पॉइंट है कि नहीं है सर। तो C प्लस और C माइनस पे तो कुछ आंसर आएगा ना। तुझे C पे तो वैल्यू चाहिए ही नहीं ना। अरे बाबा ये हाइट 1 है, बट वो दोनों वैल्यूज तो सेम आ जाएंगी ना, तो कैंसिल ही हो जाएंगे। हाँ अब तो बोल रहा है ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है? मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी पे कैंसिल हो जाएगा, तो मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी पे ये आंसर जो पहले आ रहा था वैसे का वैसे आंसर आ जाएगा। यस सर। ये तुझे मुझसे कहलवा रहा था, बराबर यही बोल रहा है ना तू? नहीं सर, मैं पूछ रहा था कि ये लॉजिक सही होगा कि नहीं। अब यार ये लॉजिक पता है,
ये कंटिन्यूटी का क्वेश्चन हो गया ना, कैंसिल हो जाएगा तो इसमें तेरी और मेरी कोई मिस्टेक नहीं है ना बेटा, कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा, उसमें क्या है, दैट डिपेंड्स, बराबर। अच्छा बच्चों, कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ तुम लोग को समझ में आया? हमारा डिस्कशन क्या था? सर अगर सपोज सी पे मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी हुई तो कैसे निकालेंगे? बराबर सर। तो कैसे नहीं निकालेंगे, वो कैंसिल ही हो जाएगा एक्चुअली। तो सी माइनस सी प्लस का निकालेंगे तो हो जाएगा ना? अरे बाबा, मिसिंग पॉइंट नहीं, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी पे कैंसिल हो ही जाएगा ना। यस सर। रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी में लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम ही तो होती है, हाँ सर, हाँ सर। तो वहां कैंसिल हो ही जाएगा ना, तो ये क्वेश्चन पूछा नहीं जाना चाहिए ना एक्चुअली। ओके ठीक है ना? सर। पॉइंट 3 में एक डाउट था हाँ बोल ना बेटा। सर, अगर एफ ऑफ एक्स कोई पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल होगा तो फिर प्रॉब्लम आएगा फिर? यार बेटा, नॉट डिफरेंशिएबल पे तो अपन क्या करते हैं, फंक्शन को ब्रेक कर देते हैं ना। याद कर, मॉड एक्स, मॉड एक्स जहाँ पे जीरो पे ब्रेक कर देते थे ना बेटा, इंटीग्रेट ही नहीं होता ना। अगर मान ले इंटीग्रेशन के अंदर कोई पार्ट ऐसा लिखा हो जो इंटीग्रेट नहीं हो रहा, तो उसको ब्रेक करके क्या करते हैं ना। अब जैसे बॉक्स एक्स है, बॉक्स एक्स को ब्रेक करते हैं, मॉड एक्स है, -1 to 2 में इंटीग्रेट करना है, डिफरेंशिएबल नहीं है एक्स इक्वल टू 0 पे, तो -1 से 0, 0 से 1 ऐसे करते हैं ना, ब्रेक कर देते हैं ना, हाँ सर, ओके सर। तो ब्रेक कर देना चाहिए उसको, बराबर है। कैन आई गो फॉर माई क्वेश्चन? बच्चों ये ग्राफ किसका है? चलो तुम तो मुझे पहले तो ये बता दो, ये ग्राफ जो मैंने बताया किसका, अप्रोक्सीमेट ग्राफ। अब तक एग्जैक्ट ग्राफ तो बता नहीं सकते ना, बट अप्रोक्स तुमने पढ़ा हुआ है ये ग्राफ पहले। ये पाई है और ये पाई/2 है। बच्चों ये किसका ग्राफ है? कॉट इनवर्स एक्स। कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ है ये, है ना बच्चों? पक्का है ना कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ है? आई एम राइटिंग द क्वेश्चन। जिसको भी क्वेश्चन सॉल्व होएगा ना बच्चों, उसको आंसर अनाउंस नहीं करना है। और तुम लोग में से मैं मतलब सी, व्हेन आई से दैट आई बिलीव यू, देन you should yourself, you should adopt it that sir trust us, और हम लोग को ये गलत काम नहीं करना है। किसी को भी आंसर आएगा तो चैट बॉक्स पे एक दूसरे के साथ डिस्कस नहीं करेगा, तेरा क्या रहा है, तेरा क्या रहा है, वो बहुत चलता है मुझे पता है, बट मेरे लेक्चर में मत करो, इससे नुकसान हो जाता है, ठीक है। सो बच्चों, इसका आंसर जिसको भी आएगा ना, जो भी आएगा, सिर्फ हैंड रेज करना है, फिर एंड में मैं पूछ लूंगा तुम लोग से। इंटीग्रेशन -1 to 1 dy/dx of cot इनवर्स 1/x। बच्चों आंसर चाहिए, सीधा आंसर। आप चाहो तो कैलकुलेट करो, लेकिन मुझे आंसर चाहिए, तो आप लोगों को हैंड रेज करना है जब भी आंसर आएगा। बच्चों, I promised you that we'll keep 1.5 hour lecture, but we took 10 minutes in the middle, 10 minutes in the beginning, so 10 minutes हम लोग कंटिन्यू करेंगे अभी। एंड दैट टू लास्ट पॉइंट है तो टाइम ज्यादा लगेगा भी नहीं, बट इंटरेस्टिंग पॉइंट है लास्ट वाला, वो करना जरूरी है। Oh, Ashok has done it. Three students, Brian and Rishi also done it. I'm waiting for 40. आयुष तेरा हो गया है। आयुष बेटा, कैन यू टेक एन अटेंडेंस फॉर मी? वैसे तो अटेंडेंस हो जाती है तुम लोग की, बट फॉर मी कैन यू टेक एन अटेंडेंस? आयुष, कैन यू हियर मी थाने से? सर एक्चुअली मैं टैबलेट पे हूँ तो मुझे सारे नहीं, नहीं, समझ पार्टिसिपेंट्स गए, दिखाई समझ नहीं गए। देते। ऋषि बेटा, कैन यू टेक इट? ओके सर। हाँ, अटेंडेंस लेके मेरे पर्सनल चैट पे डाल दो एक बार, ठीक है।
29, 30, 40 का मैं वेट कर रहा था एंड आई बिलीव कमिंग 1 मिनट विल बी। कोई ऐसे जबरदस्ती मत लिख देना, आंसर बीच में पूछ भी सकता हूँ। अबे इतना बड़ा आंसर चैतन्य क्या कर रहा है? कुछ भी कर रहा है, तारीफ कर दो तो मतलब कुछ भी लिखेगा, ऐसा थोड़ी होता है। कृष्णा को ठीक है, राजेश को भी ठीक है, अमोघ करेक्ट है। मत लिखो ना इस पे प्लीज। ए शार्विल को गलत है, शार्विल को गलत है। 36, come on guys, come on, it's easy. 40 is done, 40 done, 41, come on guys, क्या यार बच्चों, इतने स्टूडेंट्स का हो गया, इसका मतलब सबका होगा। तो मुझे अब मैं आई लोअर द हैंड, आई एम काउंटिंग इट 47। नाउ डोंट रेज हैंड प्लीज, डोंट रेज हैंड। 47 में वेरीफाई करते हैं। बच्चों कितने स्टूडेंट्स को आंसर π/2 आया है? 47 में कितने स्टूडेंट्स को आंसर π/2 आया है? रेज योर हैंड। 47 में से 22 बड़ा फास्ट जा रहा है। कुछ लोग डरे हुए हैं कि सर शायद गलत नहीं बोल दें वरना गड़बड़ हो जाएगी। 28, 47 में से 28, 29, ऑल राइट 29, ठीक है। 29 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 47, 29 मतलब 17, 18 स्टूडेंट्स को डिफरेंट आंसर। नहीं 19 हो गया, अभी 28 रह गए। ओके, आई लोअर द हेड्स। बच्चों कितने स्टूडेंट्स लोग को आंसर -π/2 आ रहा है? $47 में से 28 स्टूडेंट्स को आंसर π/2 आया है और 10 स्टूडेंट्स लोग को आंसर -π/2 आ रहा है। I don't say majority wins the game, but here it is correct actually. 10 students को I'm happy, like you know, अभी बाकी बचे हुए 8 स्टूडेंट्स को क्या है मुझे पता नहीं है, right? With the answer is π/2. 10 स्टूडेंट लोग को मिस्टेक हुआ है, उन्होंने डायरेक्ट डाल दिया है, डायरेक्ट आंसर डाल दिया है। -π/2 is the wrong answer, π/2 is the correct answer. बच्चों एक बात बताओ, इसको अगर तुम सॉल्व करोगे, इसको मैं नीचे लिख रहा हूँ उसका सॉल्यूशन, राइट? अगर तुम इसको सॉल्व करोगे तो इसको 1 पे कहां ब्रेक करोगे बच्चों? -1 to 0 माइनस, राइट, और प्लस 0 + 2 1 माइनस। अब जब अपर लिमिट 0 माइनस लिखोगे बच्चों, 1/0 माइनस कितना हुआ बताओ? 1/0 माइनस माइनस इन्फिनिटी, कॉट इन्फिनिटी, कॉट इनवर्स माइनस इन्फिनिटी कितना होएगा? पाई होएगा ना, ग्राफ में देखो ना। माइनस कॉट इनवर्स -1 कितना होगा बच्चों? यहाँ -1, 3π/2 से ऊपर जाएगा ना, 3π/4। ये तो पहला वाला पार्ट आ गया। प्लस दूसरा वाला पार्ट, पहले 1 माइनस लिखो बच्चों, 1 माइनस का मतलब 1 यहाँ पे, 1 पे तो कंटिन्यूअस है, तो 1 ही सर डाल हाउ दो ना। डिड यू डू दिस? सर नहीं समझा ये। अरे बाबा, यू ब्रेक इट, नो, -1 to 0 माइनस and 0 + 2 1। दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट व्हाट? x = 0 पे डिसकंटिन्यूअस है ना। यस सर। बस तो 0 पे ब्रेक कर दिया, -1 to 0 and 0 to 1। अच्छा ओके, ये वाला पार्ट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, बराबर ना? हाँ सर। अच्छा बच्चों नेक्स्ट क्या है बताओ? 1 माइनस डाला तो कितना आया? π/4, बराबर ना? यस सर। अरे बाबा, d/dx ऑफ cot इनवर्स 1/x। अब इधर 1 माइनस डाला, मतलब तो ये 1 ही आया ना, 1 माइनस का मतलब 1 ही। अरे बाबा 1 पे तो कंटिन्यूअस है, तो 1 माइनस डालो चाहे 1 प्लस डालो चाहे 1 डालो, सेम ही आंसर आएगा ना। दिस इज π/4 माइनस 0 प्लस डाला, 1/0 प्लस कितना हुआ बच्चों? इन्फिनिटी, और cot इनवर्स इन्फिनिटी कितना हो गया बच्चों? 0। फिनिश, आंसर इज π/। अच्छा ये तो दिख ही नहीं रहा, दिख रहा है क्या नीचे वाला? सर 0 के बाजू में लिख दीजिए। इज इक्वल टू π/2, इज इक्वल टू π/2। हाँ दिख रहा है, ये दिख रहा है,
2 नहीं दिख रहा नीचे वाला, बराबर ना? अच्छा वो भी दिख रहा है। दिख रहा है सर। ऑलराइट, बच्चों दिस वाज इजी क्वेश्चन। सी आई क्लेम वन थिंग, मुझे जब ऐसा नजर आता है ना कि मेरा बैच बहुत अच्छा है और उस बैच में कुछ मेहनती बच्चे हैं जो गड़बड़ कर सकते हैं, तब मैं क्लेम करता हूँ। ऐसा कोई बैच होगा जिसको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, उसको पूरा क्वेश्चन लिखते ही सॉल्व करके दे दो आप, उसको कुछ लेना देना है ही नहीं। बच्चों लास्ट कंटेंट इज अ कंटेंट विच यू डोंट अंडरस्टैंड, नहीं, sorry, I have used a wrong word actually. Last content, if you don't go through, I repeat, if you don't go through, you cannot solve that problem बच्चों, I can guarantee this. If last content के through you are not really approaching the problem, तो फिर IIT में वो क्वेश्चन बनेगा ही नहीं, तुम छोड़ के आओगे बच्चों, ये मान के चलो। कंटेंट क्या है ध्यान दो। सर एक सर एक पूछना था सर कुछ। हाँ प्लीज गो अहेड। सर लाइक मैंने लाइक d by dx of cot inverse x लाइक लिटरली कैलकुलेट कर लिया, तो लाइक वाज इट अलाउड बिकॉज उसमें बीच में 0 आ रहा है तो। हाँ नहीं, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होएगा तो उसको कैलकुलेट करने से उसकी कंटिन्यूटी जो है चेंज हो सकती है। मतलब तो ऐसा मान कि ln x का डोमेन जो है ना वो x ग्रेटर देन 0 है, बराबर है? से यस और नो? यस सर, यस सर। लेकिन अगर तू उसको डिफरेंशिएट कर देगा तो उसका डोमेन चेंज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हाँ सर। हाँ, वो थोड़ा ध्यान रखना। हाँ तो सर मैंने लाइक इंटीग्रल्स में ब्रेक तो कर दिया, लाइक -1 to 0 and then 0 to 1। हाँ फिर कर दो, फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर क्या है, ओके सर, करेक्ट आएगा ना? ओके सर। फिर आंसर सर करेक्ट। मुझे एक चीज पूछनी थी। बोलो प्लीज गो अहेड। सर मैंने ऐसे ब्रेक किया -1 to 0 और 0 से 1। सर उसके बाद मैंने कॉट इनवर्स 1/x को नेगेटिव के लिए पाई प्लस tan इनवर्स x लिखा। नहीं, पाई प्लस तो लिख ही नहीं सकते ना। कॉट इनवर्स का रेंज क्या होता है? 0 to पाई होता है ना। ओके सर, गॉट इट। तो पाई माइनस से लेना पड़ेगा ना बेटा। देख ग्राफ में देखना, ग्राफ से देख, पाई के ऊपर तो जाएगा ही नहीं है कभी। गॉट इट? यस सर। और फिर पॉजिटिव में सर मैंने लिखा tan इनवर्स x, तो फिर वो सही होगा? कॉट इनवर्स 1/x tan इनवर्स x पॉजिटिव में तो करेक्ट ही जाएगा ऑब्वियसली। ओके सर। ठीक है, चलो ओके गाइस, ध्यान दे दो सब लोग। रेंज लिया था ना बेटा? यस सर। Point number 4, last point for the day, and it's easy, but if you don't go through it, it will create a trouble for you. What's the time actually? I must see that first. 9:11. Okay, guys, ध्यान दो। If gx, no, हाँ ठीक है, if g is inverse of fx, right, and domain of, ये फालतू लिख रहा हूं, तुम्हें 1 मिनट में समझ में आ जाएगा थ्योरम क्या है। Point 4, and domain of fx is a to b, given f of a is equal to c, f of b is equal to d। बच्चों ये सब इस लैंग्वेज पे मत जाओ, थोड़ा ग्राफ पे जाओ। जो ग्राफ बना रहा हूँ ना उस पे जाओ। ऐसा ग्राफ बना बच्चों, ये फंक्शन का ग्राफ है। हाँ, ए पे ये वाली हाइट जो आ रही है ना बच्चों, ये सी आ रही है, और बी पे ये वाली हाइट जो आ रही है वो डी आ रही है। दिस इज गिवन। और ये फंक्शन जो मैंने बनाया ये y is equal to fx है, y is equal to fx है। तो बच्चों एक बार होता है, ऐसा ही तो कुछ होता है। ये जैसे यहाँ a, ये b, ये c, ये d, ये fx, a का एरो c को जाएगा, b का एरो d को जाएगा। और बच्चों अगर ऐसा कुछ हो, ये इसका इनवर्स है, ये g है, तो बताओ बच्चों, y is equal to fx है तो x is equal to g of y होगा कि नहीं होगा? सही है सर? नो? यस सर। बराबर ना? ये सब किया हुआ है ना बच्चों हमारा। हाँ सर। अब मुझे इस बात का जवाब दो बच्चों, इस बात का, a to b fx dx प्लस
C2D GY/DY। बताओ बच्चों ये वाली लिमिट किसकी है? अगर मैं इसको GY/DY लिख रहा हूं तो ये y की लिमिट है कि नहीं है? मानते हो ना बच्चों? पता है वो क्या बोल रहा है कि अगर इसका इनवर्स ये है और x इक्वल टू a लिखने से y की वैल्यू c आती है और x इक्वल टू b लिखने से y की वैल्यू d आती है, देखो ना, है ना? तो इसका जो आंसर होगा ना, दैट आंसर यू डोंट नीड टू कैलकुलेट, इट इज BD माइनस AC। बच्चों एक बात बताओ, एरिया देखो प्राजस कितना जल्दी से आंसर, मतलब ऐसे बच्चों को तुम जो ना कभी यू नेवर फॉरगेट दैट, उसको एकदम पकड़ में आ गया, जैसे ही लिखा ना BD माइनस AC उसको पकड़ में आ गया। बच्चों एक बात बताओ, A to B में fx को इंटीग्रेट करने का मतलब ऐसा हुआ ना, ऐसा यही हुआ ना बच्चों? अरे सही यस और नो? यस सर। अब बताओ बच्चों, इसके इनवर्स को अगर डिफरेंशिएट करोगे तो dy का मतलब y एक्सिस पे इंटीग्रेट करोगे ना, और gy का मतलब क्या हुआ बच्चों? इसका मिरर इमेज लोगे तो कॉन्केविटी डाउन होगी, लेकिन एरिया कौन सा निकलेगा बच्चों? ये वाला एरिया निकलेगा ना बच्चों, ये दिमाग में फिट कर लो। fx के इनवर्स का एरिया निकालना है, इसका मतलब fx का एरिया किधर निकालना है? y एक्सिस पे निकालना है, अप्रोप्रिएट लिमिट्स में। आई रिपीट, फंक्शन का एरिया अगर एक्सिस पे निकल रहा है तो उसका इनवर्स का एरिया निकालने के लिए फंक्शन के एरिया को ही y एक्सिस पे इंटीग्रेट कर दो। आई रिपीट, फंक्शन को ही y एक्सिस पर इंटीग्रेट कर दो अप्रोप्रिएट लिमिट्स में। बच्चों ये एरिया निकालना अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन। बताओ ये एरिया यही है ना जो लिखा है यहाँ पे बच्चों? यस सर। यस सर, यस सर। अब अगर कोई बच्चा बोलता है कि सर ये y एक्सिस वाला समझ में नहीं आया, तो अपन एक काम करते हैं, इसको ऑथेंटिसिटी में चेंज कर देते हैं। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन डेफिनेट इंटीग्रेशन का यूज करते हैं और ऑथेंटिसिटी में चेंज कर देते हैं। क्या ऑथेंटिसिटी बच्चों? कि अगर फंक्शन का एरिया, अगर नहीं यूज करना था, फंक्शन का एरिया x एक्सिस पर निकाल रहे हैं तो उसका इनवर्स का एरिया उसी फंक्शन को y एक्सिस पर इंटीग्रेट करके निकाला जा सकता है। ये राइट, ये तो आंसर आ गया। चलो बच्चों, अगर एल्जेब्रिकली सॉल्व करना होता तो मुझे बताओ, इसको मैंने लिखा a to b। बच्चों ध्यान देना सब लोग, a to b fx dx, और मतलब ऑल्टरनेटिव मेथड से fx dx प्लस, बच्चों ध्यान दो, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। बच्चों g ऑफ y बताओ क्या नजर आ रहा है यहाँ पे? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ g ऑफ y? x। बच्चों dy क्या होगा? dy f dash x f dash x dx बराबर यही होगा ना बच्चों? क्या बोलते हो? सर। अब बच्चों लिमिट बताओ, लिमिट। अब x की लिमिट चाहिए मुझे, x की लिमिट चाहिए। x की लिमिट कहां से निकालोगे बच्चों? y का वैल्यू लिख करके x का लिमिट निकालोगे ना। तो बच्चों जब y का वैल्यू c लिखोगे, c तो है y का वैल्यू c, जब y का वैल्यू c लिखोगे तो बच्चों g ऑफ c कितना आएगा? इसमें देखो बताओ, a आएगा ना। अरे g ऑफ c ये आ गया ना, g ऑफ c a। बच्चों सही है ना? और ये कितना आएगा बच्चों? g ऑफ d कितना आएगा बताओ? g ऑफ d x का वैल्यू b बराबर है। अच्छा ध्यान से देखो इस रिजल्ट को, कैन आई राइट इट a to b fx प्लस x f dash x? बताओ कैन आई राइट इट लाइक दिस? f of x इक्वल टू t। अरे क्यों t? ये तो डायरेक्ट इंटीग्रल है ना, x f x होता है ना इसका इंटीग्रल। हाँ सर। a to b बताओ बच्चों, सही है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, b f of b माइनस a f of a। बच्चों क्या बन गया है बता सकते हो? f of b कितना आ रहा है? लिखा है ना BD माइनस AC। BD माइनस AC। यानी बच्चों हम लोग ने वाइस वर्सा प्रूव करके क्या प्रूव कर दिया पता है? सब लोग ध्यान देना, सब लोग ध्यान देना। वाइस वर्सा लिख के क्या प्रूव कर दिया हम लोगों ने? कि भाई अगर मुझे किसी इनवर्स का एरिया निकालना है तो फंक्शन को ही y एक्सिस पर इंटीग्रेट कर देना चाहिए, इनवर्स का एरिया आ जाएगा। ये अगले चैप्टर में कहीं काम भी आ जाएगा हम लोग को।
बच्चों लेकिन पॉइंट नंबर 4 क्या है उस पर ध्यान दे दो। पॉइंट नंबर 4 क्या है कि a टू b में fx dx प्लस c टू d में उसका इनवर्स का इंटीग्रेशन, मतलब ये फंक्शन ये इसका इनवर्स है, उसका एरिया bd अपर लिमिट्स का मल्टीप्लीकेशन माइनस लोअर लिमिट्स का मल्टीप्लीकेशन आंसर आ जाएगा, प्रोवाइडेड f और g एक दूसरे के इनवर्स हो और f ऑफ a c हो और f ऑफ b d हो, तो आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। बच्चों इतने घटिया घटिया क्वेश्चन इसमें बनते हैं, यू कैन नॉट इमेजिन, आई रिपीट यू कैन नॉट इमेजिन, ऐसे क्वेश्चंस इसमें बनते हैं, राइट। इन क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन मुझे तुम्हारे लिए लेना है,